Bhagavad Gita session, chapter number 5. We finished chapter number 4 last time. So we are starting with chapter number 5, text number 1 to 6. And since we don't have any planned questions, so Hamlog is bar, we'll do our temple visit. Because some of the devotee has messaged me that we should have that at least once in a month, if it is not more than that. So this is the way we can keep it. So let's start with a Mangalacharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sadgrajatam Sahagana Raghunatham Vritam Sitam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vritamscha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurtvise Namaha Shri Nityananda Avadhurtendur Vasudha Prana Vallabha Janava Jivatipati Krishna Prema Pada Prabhu Padmavati Sutta Shriman Sachinandana Purvajaha Bhaunmatra Jagatrata Rakta Gaura Kalevaraha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Radhe Vrishalakshi Chandrakoti Samaprabha Shri Krishnam Samhitam Dehi Nityakunj Viharinim Radhe Meri Swamini Main Radha Ju Kudas Janam Janam Mohe Dijiyo Shri Vrindavan Vas सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So thank you very much, everyone, for joining us today again. I'm really thankful to you. If anyone would like to have the recap, and if any one of you is, want to keep their camera on, it would be good service for me. Thank you so much. So that way, at least I can talk to the person who is next to me rather than just talking to the black shadow. That's a sincere request. Okay. Thank you, Shweta Mataji. So at least I can talk to you when I'm giving a class. Oh, now Tilak Mataji also appeared. So let's have the recap. If someone remember what we discussed last time before closing chapter number 4. We did lot. Yes, Salish. પ્રભુ કર્મ યજ્ઞ અને જ્ઞાન યજ્ઞ અને ભક્તિ યજ્ઞ વિશે ચર્ચા કરેલી. એમાં ભક્તિ યજ્ઞ સૌથી મોટો કહેવાય. પછી ગુરુ દક્ષિણા વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરેલી હતી. પછી દિવ્ય જ્ઞાન વિશે આપણે ચર્ચા કરેલી હતી. અજ્ઞાન અને જ્ઞાન એ વિશે ચર્ચા કરેલી કે અજ્ઞાન બંધનનું કારણ છે અને જ્ઞાન મુક્તિનું કારણ છે. પછી સત્સંગ વિશે ચર્ચા કરેલી, સત્સંગ શું કહેવાય. પછી આપણે ચર્ચા કરેલી જે બી કઈ આપણા મનમાં સંશય ઉઠે તેને જ્ઞાન રૂપી સત્રથી આપણે કાપી નાખવું. અને પછી નવરાત્રી અને રાસ મહારાસ લીલા એ બે વચ્ચે શું સંબંધ છે એની વાત આપણે કરેલી હતી. કે યોગ માયા કોણ કહેવાય, મહામાયા કોણ કહેવાય. યોગ માયા ભગવાનને મળવામાં મદદ કરે છે. આપણી જે કઈ આપણું કમજોરી હોય તો તેને ક્લિયર કરે, અને મહામાયા પછી જયારે આપણું પાસું મજબૂત કરે. રાસલીલા ક્યાં ક્યાં થયેલી, નિધિવન, સેવાકુંજ, ચંદ્ર સરોવર એ આપણે વાત કરેલી. પછી મહારાજ ક્યારે ક્યારે થાય છે, શરદ પૂર્ણિમા, કાર્તિક પૂર્ણિમા. પછી રાસનો મુખ્ય હેતુ વિશે ડિસ્કસ કરેલું. જન્મ જન્મથી બધા જે ભક્તો તપશ્ચર્યા કરતા હતા તેમને આસ્વાદન કરાવવા અને શ્રી કિશોરીજીનું અનુરાગ અને તેમનું મહત્વ જણાવવા માટે વાત કરેલી. પછી ગોપીઓના નામ નથી, કારણ કે એ ત્વયી કહેવાય છે, એ એક વાત આપણી આવેલી હતી. પછી રાધા રાણી કોણ છે એ વાત થયેલી હતી. પછી ભોલેનાથ શંકર ભગવાન ગોપી કેવી રીતે બન્યા અને કોણે કોણે એમને મદદ કરેલી. સ્વરૂપ યમુનાજીએ આપ્યું, મંત્ર લલિતા સખીજીએ આપ્યું, ભાવ માનસરોવરમાં રાધા રાણી એમણે એ કર્યું, અને એમનું જે નામ છે ગોપેશ્વર મહાદેવ એ કૃષ્ણએ એમને આપ્યું. અને પછી વ્યવહારિક લીલા અને વાસ્તવિક લીલા વિશે વાત થઈ હતી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. Excellent, Prabhu. Shailesh Prabhu. Excellent. You summarize everything. Anyone wants to give some more lights? Or someone wants to share something? Actually, he has covered everything. But if you wanna put something else which you missed. In last shloka, आखू सारांश हतु के हम कितना भी खा रहे हैं, भगवान लिख रहे हैं, और जिस टाइम खाना बंद होगा उस टाइम भगवान, एक बार अपन भगवान के सामने देखेंगे तो भगवान लिखना बंद करके, એટલે કે આપણે ભાવ, આપણે ખાવામાં જ રસ છે તો ભગવાન આપણને એટલા જ જન્મો આપશે કે હા તું બસ ખાવામાં જ્યાં સુધી તું તૃપ્ત નહીં થાય ત્યાં સુધી તું જમ્યા જ કર. પણ એક વખત તારી તૃપ્તિ થઈ જશે કે બસ મેં જમી લીધું છે અને પછી તું એ બધું જ મૂકીને મારી સામે જોઈશ, દેવ બૂમો ના પાડ, તો એ વખતે તું મારી સામે જોઈશ ત્યારે હું પણ પછી બધું જ ભગવાન જ આપણું હેન્ડલ કરશે. Yes, so as soon as you take a shelter of Bhagwan, so actually on the same note in Srimad, so Bhagavad Gita agar jata
જ્યારે ભગવાન ભક્તિ યોગ સમજાવશે ત્યારે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે this is supporting to what you are discussing, Mataji, that સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષેશામિ મા શુચઃ. You just shall surrender all to me, living everything what you have. I mean, like, abandon all variety of karmas and surrender on to me. I will take care of everything. And then Arjuna says that how can I do that? How can I, abandon everything? Means sarva dharman, how can I, मैं सभी धर्मों को कैसे छोड़ के आपकी शरण में कैसे आऊं? Practically show me how should I do that? तब भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु. अर्थात मारी भक्ति करो, मारी सेवा करो और मने नमस्कार करो. Is basically you started the devotional life, devotional service, and that is the way you can come and take a shelter of me. So thank you, Mataji. Thank you, Sailesh Prabhu. Wonderful. Anyone else? Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Shailesh Prabhu and Shweta Mataji have already summarized everything, but one point which I remember is there was one thing we discussed, that how we cannot progress in bhakti, कि हम भक्ति में आगे कैसे नहीं बढ़ सकते. तो उसके दो कारण होते हैं. एक है लैक ऑफ फेथ, कि हमारा फेथ नहीं है, और एक आपने बताया था लैक ऑफ अर्जेंसी. तो उसके अंदर जो है आपने एग्जाम्पल भी दिया था युधिष्ठिर और यक्ष का जो वार्तालाप होता है, कि भाई वो पूछता है कि भाई सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है. तो उसने कहा कि सबसे बड़ा ट्रुथ जो है कि हम मर जाएंगे, डेथ इज द बिगेस्ट ट्रुथ. फिर उसने कहा था सबसे बड़ी फूलिशनेस क्या है, मतलब कि हम ये मानना नहीं चाहते कि ये जो डेथ है हमें आएगी करके. Yeah, and we can तो keep it like this, that for me the truth would be different, and he's dying. Yeah, he got yeah, killed, yeah, but for me it might be different. That's yeah, the act. Yeah. yeah. So that was one of the point. And एक जो एक ये बताया था कि जो मतलब वो गुरु दक्षिणा का उन्होंने कहा, तो गुरु दक्षिणा में कि भाई सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा हम, आपने कहा था कि गुरु दक्षिणा होती क्या है. तो वही कि भाई हम जो है उसी हिसाब से जिए जो नॉलेज हमें गुरु ने प्रदान करी है, मतलब उस पाथ पे चलने का, कि जो गुरु ने हमें बताया है, और जो भी हमारा बिहेवियर होगा वो हमारे गुरु महाराज को दर्शाएगा, कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारा जो है हमारे गुरु महाराज जो हैं उसी हिसाब से दिखेंगे. तो हमें वैसा ही व्यवहार व्यचरण सब कुछ वैसा करना चाहिए जैसे हमें गुरु महाराज ने सिखाया है, या तो वही हमारी असली गुरु दक्षिणा होती है. जी ब्रो. Excellent. Thank you. Anyone else? We can start our. Okay. So let's start from chapter number 5, shlok number 1 till 6. So chapter number 5 is basically क्या है, कर्म योग. भगवान कर्म योग के बारे में थोड़ा बहुत नहीं, कर्म योग के बारे में भगवान इसमें हमें समझाते हैं. Start from the basic till he get to the advancement, and then he will tell the difference also, what is good and what is not, and जो थोड़ी बहुत जो कमियां शुरुआत ही इस चैप्टर की होती है कि अर्जुन is trying to, like how you guys are trying to understand very nicely and in detail. Arjun has picked up chapter number 4 41 श्लोक, और उसने उसको वापस से भगवान से पूछा कि you tell me something else, but now I'm confused, tell me what is the right way. So this is what chapter number 5 is started with, the node. It's an open question from Arjuna that, okay, you explained me this, but I found this is little contradicted. So chapter number 5, shlok number 1, Arjuna says that Arjuna uvacha sannyasam karmanam krishna punar yoga cha sanshasi yachendriya ityor ekam tamhe bruhi सुनिश्चितम. कि अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म का त्याग करने के लिए कहते थे, अर्थात कर्मफल का त्याग करने को कहते, और फिर मुझे कहते हो कि भक्तिपूर्वक कर्म करने के लिए कहते हो. सो पहले यू सेज दैट
you abandon the karma phal, and now you are asking me to work into the devotion. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अर्थात which one is better? So here Arjuna is referring from chapter number 4, text number 41, where Krishna says that जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है, और हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता. So this is what Krishna explained into 4.41, right? कि जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्याग करता है और भक्ति करता है, that is basically the best one, और वो अपने कर्मों के बंधन से नहीं बनता. तो अर्जुन इस श्लोक के अंदर भगवान को पूछ रहे हैं कि रिफरिंग टू योर प्रीवियस श्लोक 41, कृष्णा आपने कहा कि मुझे कर्मफलों का त्याग करना है, और फिर आप मुझे कह रहे हो कि मुझे भक्ति पूर्वक कर्म भी करना है. Then I am little confused कि आप मुझे बता सकते हो कि निश्चित रूप से मुझे इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है. So this is the open question from Arjuna. Now Krishna has started explaining from 5.2. So 5.2 में भगवान कहते हैं कि श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय कुरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. Right? So भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म फल का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है. सो अर्जुन ने पूछा पहले 5.1 में कि टेल मी विच वन इज बेटर, कर्म फल का त्याग या भक्तिमय कर्म. तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन किंतु इन दोनों में से भक्ति युक्त कर्म जो है उसे मैं श्रेष्ठ कहूंगा. राइट? तो इस श्लोक के अंदर हम दो चीज समझेंगे. पहली चीज, जीव अलग अलग शरीर धारण क्यों करता है, और दूसरा वैराग्य अर्थात रिनाउंसिएशन के सही मायने क्या है. राइट? सो हम बहुत बार सोचते हैं कि वो सन्यासी है, दीज आर मुनि, दीज आर सन्यासी, ही इज इन द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ. सो वी हैव दैट कंसेप्शन. सो नाउ आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन कि आपके अंदर वैराग्य की परिभाषा क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैराग्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनाउंसिएशन, आप बताइए मुझे. Is anyone can tell me what is the definition of वैराग्य, या आपके हिसाब से वैराग्य का मतलब क्या है? हरे कृष्ण प्रभु. प्रभु वैराग्य એટલે કોઈ બી ભૌતિક વસ્તુઓ પ્રત્યે આપણો અણગમો, એટલે એના પ્રત્યે આપણે મોહ ના પામવું ને. Okay, that's okay, nice. Anyone else? So this is the basic definition we all have in our mind. Vairagya means we detach from the material things, right? That is what the vairagya is, and that is what the many of the cult or many of the order of people they follow by putting a saffron robe or white robe or whatever it is. अपने सफेद कपड़े या भगवे वस्त्र धारण करके वो जंगल में चले जाते by saying that okay we are in a vairagya situation. हमने renounce कर दिया है अपने आप को, right? That is what the definition we have. Now that is we gonna clear exactly what is the vairagya is in this shloka. So देखिए, पहला, जीव अलग अलग शरीर क्यों धारण करता है. तो जो सकाम कर्म है, right, अर्थात the karma which you do for the indriya tripti, the karma which you do for the sense gratification, सकाम कर्म ही भवबंधन का कारण है. जब तक मनुष्य शारीरिक सुखों का स्तर बढ़ाने के लिए, right, कर्म करते रहता है, means we act for getting more benefit, getting more comfort, getting more luxury. तो जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है. Try to understand this statement. सकाम कर्म का डेफिनेशन सिंपल क्या है? If the work you are doing for the sense gratification, if you are going just for the work to get the money so you can enjoy more, you can have a vacation, to have a nice weekend, to buy more household items,
to buy more cars, to buy more houses, to buy more wealth, to buy more gold, etc., etc. So if you are working for the sake of, more comfort, जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है. Means one after one after one after one, he's going to take more birth, because what he has a thought in his mind, by doing this, I'm going to get more enjoyment, I'm going to get more recognition, I'm going to get more comfort. तो आप और एक जन्म अपने लिए तैयार करते हैं. जो भी सकाम कर्म आज हम कर रहे हैं, it is basically depositing for the next birth. That is the disadvantage of sakam karma, right? और उसकी वजह से क्या होता है, when you deposit for the next birth, आप अपना भवबंधन को बनाए रखते हो. मीन्स आप इस संसार से और बनते रहते हो. You are not trying to relieve, you are trying to be more tied with the संसार, because आप एक नया बॉडी क्रिएट कर रहे हो अपने इस कर्म से. That is called the sakam karma, right? श्रीमद् भागवतम क्या कहता है? श्रीमद् भागवतम के चैप्टर नंबर 5, स्कंद नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, टेक्स्ट नंबर 4 to 6, 4, 5 और 6, इनका जो ट्रांसलेशन है, दैट इज वी हैव पुट इट हियर, दैट लोग, भागवतम कहता है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल हैं. दे आर मैड बिहाइंड सेंस ग्रेटिफिकेशन. वे यह नहीं जानते कि उनका कलेशों से युक्त, अर्थात देयर आर सो मेनी इश्यूज विद दिस बॉडी. सो कलेशों से युक्त यह शरीर जो है, उनके विगत सकाम कर्मों का फल है. जो आपने पिछले जन्मों में जो कर्म किया है, उसी का फल आपका ये कलेशमय शरीर है. फॉरगेट अबाउट पिछले जन्मों का. आप जैसे अपने कर्म आपने अभी किया है, फॉरगेट अबाउट कुछ साल. अगर आपने कल अच्छी तरह से आपने अपने आप को केयर नहीं किया, आपने से फॉर एग्जांपल आपने आइसक्रीम कोला बहुत पिया yesterday, what you are getting today is more cold. So whatever the effect you are getting is whatever the karma you have done yesterday. So whatever the body you have got today, it because you have deposited those karma in your previous life, right? तो लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल हैं. वो ये नहीं जानते कि उनके कलेशों से युक्त, right? यह शरीर जो है, उनके विगत सकाम कर्मों का फल है, जो उन्होंने पहले किया है. अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है. If you are just working or acting for the sake of sense gratification, then that is not what right is, that is not what good is. तो जब तक मनुष्य असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है, right? Till the moment you don't inquire for your real identity, आपका जो स्वरूप है, जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, जब तक आप उसके लिए काम नहीं करते, जब तक आप उसके लिए इंक्वायर नहीं करते, तब तक आपका जो जीवन है वो व्यर्थ है. There is a very good example in Vrindavan. If you go, there is a Lala Baba temple, right? Lala Babu. So he was in Calcutta actually, और वो इतने रईस थे. He was very wealthy person. He was a very big merchant actually. और उनके पास अथाक संपत्ति थी, लेकिन उनका कार्य क्या था? वो आराम से सोते थे और आराम से उठते थे. In the sense, he wake up around 1 or 2 o'clock in the afternoon, and that is what his lifestyle is. So one day what happened? Something happens. Everyone was away from the house, and there was a धोबी, जिसे हम बोलते हैं ना कपड़े धोता. तो वो औरत आके उन्होंने नॉक किया, and that somehow Lala Babu has to wake up from the room and came out to open the door. और धोबन ने क्या किया? धोबन ने जैसे लाला बाबू को देखा, लाला बाबू को सिर्फ एक शब्द कहा, अरे आप अब तक सो ही रहे हैं, right? So Dhoban was trying to say that you are still sleeping, in the sense sleeping in this निंद्रा. बट ये चीज somehow or other, उसके जो कुछ ना कुछ कर्म होंगे, कुछ ना कुछ रिएक्शन होंगे अच्छे वाले, या कोई ना कोई कृपा होगी, उस धोबन का जो शब्द था कि आप अब तक सोए ही हैं या सो ही रहे हो, उनको वो बात चुभ गई और उनको सच में रियलाइज हुआ. इट्स जस्ट अ 1 fraction of second is required to person to awake from his dormant consciousness. वो सोए हुए जीव को झंझोड़ने के लिए सिर्फ एक शब्द या एक सिचुएशन ही काफी होती है. वो किसी की भी हो सकती है. तो यहाँ पे इस धोबन ने वो काम किया. उसका शब्द था कि आप सोए हुए हो अभी तक, लेकिन वो शब्द लाला बाबू के कान में पड़ गए कि यार मैं अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में, मैं सिर्फ सोया हुआ हूँ. मैंने अपने जीवन में जो भी किया वो मैंने सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए किया, फॉर माई एक्स्ट्रा कंफर्ट एंड एक्स्ट्रा लग्जरी एंड एवरीथिंग. आई हैवंट डन एनीथिंग फॉर माई सोल.
and that is the moment he left Calcutta and he went to Vrindavan. और आज उनका वहां पे वृंदावन में आप जाओगे तो लाला बाबू का एक मंदिर है, राइट? सो दिस इज हिज स्टोरी अबाउट. तो जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है. और वेदांत सूत्र भी यही कहता है. जब वेदों का अध्ययन क्या है, वेदों की ऋचाई क्या कहती है, आप ये करो आपको वो मिलेगा, आप ये करोगे आपको वो मिलेगा, आपको वैसा कुछ चाहिए आप वैसा करो. सो वो आपकी जो नीड्स है, आपकी जो सकाम इच्छा है, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए वेदों के अंदर बहुत सारे प्रविधान है, राइट? लेकिन जब वेद खत्म होता है, जब आपको लगता है कि नो, नाउ आई एम डन इनफ, आई हैव ईट माय फ्रूट्स इनफ, नाउ आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस वन, एट द टाइम द वेदांत सूत्र इज स्टार्टेड. एंड वेदांत सूत्र का जो पहला श्लोक है, व्हाट इज दैट? यथाथो ब्रह्म जिज्ञासु. नाउ लेट मी इंक्वायर फॉर द ब्रह्मा, राइट? यथाथो ब्रह्म जिज्ञासु. अगेन, सो जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है. और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है. और कब तक वो सकाम कर्म करेगा? इज अ वेरी नाइस काइंड ऑफ स्टेटमेंट श्रीमद् भागवतम हैज केप्ट. कब तक वो सकाम कर्म में उलझा रहेगा? जब तक वो अपने निज स्वरूप को पहचान नहीं लेता. जिस समय उसे ज्ञान होगा अपने निज स्वरूप के लिए, उस समय वो सकाम कर्म के प्रति उसका जो मोह है वो निरस होना शुरू हो जाएगा. वो उससे अपनी इच्छा, अपनी जो रुचि है, उसे निकालना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको फिर उसमें मजा नहीं आएगा. उसको समझ जाएगा कि यार ये मैं जो कर रहा हूँ इज नॉट मेकिंग सेंस. आई वाज रीडिंग वेरी गुड कोट टुडे एंड इट सेज दैट व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट, राइट, और अ होटल, आप वहां पे रहते हो, आप वहां पे खाते हो, आप वहां पे सोते हो, यू गो टू द अम्यूजमेंट पार्क ऑफ द होटल, यू एंजॉय द लॉन्च, यू एंजॉय योर इवनिंग स्नैक्स, मॉर्निंग स्नैक्स एंड एवरीथिंग. बट आप उस होटल के प्रति आसक्त नहीं हो जाते, उस कंफर्ट के प्रति आसक्त नहीं होते, आप उसी के बारे में नहीं सोचते रहते. यू थिंक दैट आई एम हियर फॉर 2 nights or 3 nights and I am getting out for my another destination. Similarly, when you are in this material world, you have to think this comfort or this area or this lounge or this environment as just a hotel room. You should not get too much entangled into it, right? और इसीलिए आप तब तक सकाम कर्म और इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हो जब तक आपको अपने निज स्वरूप के बारे में पता नहीं चलता. और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है. और जब तक वो इंद्रिय तृप्ति के लिए करता रहता है काम, अपने कंफर्ट के लिए, अपने सेंसुअल प्लेजर के लिए, जब तक ही इज गोना वर्क, ही इज डिपॉजिटिंग हिज कर्मा फॉर हिज नेक्स्ट बॉडी. तो आज हम जो भी कर रहे हैं, हमारा एक दूसरा अवतार, हमारा एक दूसरा शरीर, हमारा एक दूसरा बर्थ, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो रहा है स्फीयर में. सो व्हेन यू गोना लीव दिस बॉडी, यू गोना गेट दैट बॉडी, राइट? Then what is the solution? यही श्रीमद् भागवतम का 6वां श्लोक कहता है कि this is what is the issue is, right? Then what is the solution? Solution is भले ही उसका मन सकाम कर्मों से व्यस्त रहे, because it is not possible for everyone to detach from the sakam karma and engage into the spiritual life, right? So Srimad Bhagavatam is very practical. What it says, भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, right? We are all having the same situation, right? We are still little bit here and there, higher or less. We are trying to engage in the sakam karma क्योंकि अज्ञान अभी भी हमारे अंदर है. लेकिन what is the way out? किंतु अगर उसे वासुदेव की भक्ति की प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन हाँ, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है, राइट? व्हाट इज द थिंग? चाहे वो सकाम कर्मों में व्यस्त रहे, चाहे उसके अंदर थोड़ा बहुत अज्ञान हो, लेकिन व्हाट यू शुड ट्राई और व्हाट यू शुड हैंकर फॉर इज टू गेट अ डिवोशन टुवर्ड्स वसुदेव, टू गेट अ डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा, राइट? जैसे ही स्टार्टेड डेवलपिंग द डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा, उसके लिए एक चांस जो है वो क्रिएट हो जाता है, उसके लिए एक एग्जिट विंडो बनना शुरू होते हैं. सो धीरे 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 वो आपके लिए एक, वो बोलते हैं ना, वाइल्ड कार्ड, यानी अगर आपने भगवान के प्रति भक्ति दिखाई तो आपके पास वो वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो सकती है. यू कैन गेट आउट ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ समहाउ और अदर, राइट? भवबंधन से छूटने का जो अवसर है वो आपके अंदर प्राप्त होता है. एवरीवन हु इज प्रेजेंट इन दिस सेशन टुडे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ,
हमने कुछ ना कुछ भगवान या भगवान के संतों के प्रति भक्ति दिखाई होगी या भक्ति करने का सोचा होगा. That thought also, because of that we are all here and listening the श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम. यही एक अवसर भगवान ने हमें प्रदान किया है. कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता. यही एक अवसर भगवान ने प्रदान किया है. ये अवसर जो आज बना है, ये भागवत सुनने का या श्रीमद् भागवतम सुनने का या रामायण सुनने का, वो अवसर कब प्राप्त हुआ है? अगर कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमारे अंदर सिर्फ अगर इच्छा भी प्रकट हुई है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है या भगवान के भक्तों के प्रति थोड़ी बहुत सेवा समर्पित करनी है, दैट इज व्हाट एक्चुअली क्रिएटिंग अ अवसर फॉर गेटिंग आउट ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ. क्योंकि अगर इस नॉलेज को हम सीरियसली लेते हैं, देन वी स्टार्टेड एक्टिंग ऑन टू इट, एंड एज सून एज वी स्टार्टेड एक्टिंग ऑन टू इट, वी आर स्टार्टेड, हम अपना जो नेक्स्ट शरीर है उसको जलाने का काम अभी से शुरू कर रहे हैं. So then we don't need to take a birth into this material world again, right? Therefore, the ज्ञान, right? What is the ज्ञान? सबके पास अब तो ये ज्ञान है. That one is not this material body, but the spirit. हम सब जानते हैं, right? We are not the body, we are the spirit, right? But that is not sufficient for liberation. The ज्ञान that we are not the body, we are the soul is not sufficient for liberation. One has to act in the status of the spirit soul. आपको इस हिसाब से अपना वर्तन भी करना पड़ेगा. Otherwise there is no escape from the material bondage. इसका कोई एग्जांपल देना चाहेगा? कि we should act. Everyone knows who is sitting here right now. Everyone knows that we are not this body, we are the soul. But Krishna says that is not sufficient. You have to act in the status of the spirit soul. Otherwise there is no escape. Right? What is the example for that? We have to do akarma. No. In the day-to-day life example, everyone knows that we are not the body, we are the soul. But we don't act based on. प्रभु जी जो भी कर्म कर रहे हैं उसे कृष्ण से जोड़ दें, उनको समर्पित करें. यानी कि खाना बना रहे हैं तो एज कृष्ण जी के लिए भोग बना रहे हैं. जो भी कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण के साथ जोड़ दें. तो वैसे Philosophically you are right. Philosophically you are right, Pragya Mataji. But I am talking about the practical stuff. हम सभी जानते. श्वेता माता जी, प्रभु जी. Yeah, Shweta Mataji and Pragya Mataji. Yeah, I was telling both of you. So yeah, so you're philosophically you're right, theoretically you're right, but practically I want to know that what mistakes we are doing. We says that we know all, we are soul, but do we act on this knowledge? Because Krishna says that if you have this jnana that you are not the body, you are the soul, but if you don't act based on that, then there is no escape. You will be tied to this one. Prabhu, practical example, for example, if someone is in a university or college, right, and he's studying and he's a backbencher. He knows if he don't study, like if he study, he will get out of this university and he will get passed. But still, he's a backbencher. He knows that for getting out of this university and getting the degree, he has to study. But still, he's not studying, right? And he's still doing like whatever he wants to apart from studying, and then remains still in the university by failing. Yes, that's very nice. Thank you. Or another example, that the devotees who know that we are not this body, we are the soul, but whenever there is a time of dealings happen, when there is a time of behavior happen, when there is a time of reciprocation happens, they exactly behave as the non-devotee. Right? They exactly behave as the non-devotee. Say, for example, we want to have a wedding, like I want to have a wedding. I'm talking about when I was about to have a wedding. If I would know at the time what is the body and soul, and I was knowing that from the child. भारत में जिसने भी जन्म लिया उसको पता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है. लेकिन do we execute based on that? क्योंकि हम फिर एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? जैसे नॉर्मल सा काम कर्मी करता है. 5 करोड़ का हमने शादी किया, उसमें 500 करोड़ लोग बुलाए,
हमने ये किया, हमने वो किया, we act exactly and we come into ये करना पड़ेगा because this is doing, we have to do that, we have to do this, everything like that, right? We don't focus based on that one. Do you all these things require? No, right? When devotees behave like that, then the normal people says that, okay, what is the difference between you and me? Because you are also behaving in the same way, I am also behaving in the same way. Krishna says exactly. Non-devotees also behaving who don't have a knowledge in the same way. If the devotee is also behaving in the same way as the non-devotee, then the designation or the execution for both of the categories is going to be same. Because devotees also who has a knowledge of the soul is not acting on the platform of the spiritual knowledge, right? That is what Krishna is trying to say. That is very important. I like this statement very nicely. That ज्ञान होना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, आपको उस स्पिरिट सोल के हिसाब से वर्तन भी करना पड़ेगा. Then only you will get out of it. Otherwise theoretical knowledge कितना भी हो हमारे अंदर, अगर वो प्रैक्टिस में नहीं आएगा, अगर वो हमारी डीलिंग्स में नहीं आएगा, then वो पूरा नॉलेज रखा हुआ व्यर्थ है. चाहे मैं कितना भी प्रभु जी माता जी आपसे कहूं, चाहे कितने भी श्लोक में करूं, but if I am not getting inside my life into my day-to-day practice, then that knowledge is similarly, the book is kept on the shelf. It is none of the use. That book is in our mind through the sloka and the verse, but is not going to be helpful in any of the ways. Correct? Any question? हाँ प्रभु जी, आपने एक एग्जाम्पल भी दिया था इसमें, जैसे बैंक का कैशियर जैसे नोट को गिनता है, आपने पहले भी शायद दिया था, तो हमें उसी तरह आसक्ति रखनी चाहिए जैसे कि वो बैंक का कैशियर कैश के साथ करता है. हाँ, वो थोड़ा डिफरेंट है, what I'm trying to say. Yeah. Bank cashier is you have to detach with this the dealings when you are acting into when you are behaving in this world. But this is how we should act based on the knowledge which we are carrying. Because when the dealings comes, हम भी ऐसे हम right now we are talking about all knowledge. We are discussing about Gita. We have so many. We understand everything. But जब हमें उसको व्यवहार में लाना होता है, तब उससे हम कोसों दूर रहते हैं. तो वो फायदे वाला नहीं है, भगवान कह रहे हैं. आपको वो अपने व्यवहार में भी लाना पड़ेगा, राइट? दूसरा, नाउ द नेक्स्ट वन इज वैराग्य, रिनाउंसिएशन. जैसे शैलेश प्रभु ने कह रहा, वैराग्य का मतलब क्या है कि टू डिटैच फ्रॉम द मटेरियल थिंग. दैट्स व्हाट ही मेंशन. बट यहाँ पे वैराग्य की परिभाषा अलग है. तो सही में वैराग्य क्या है एक्चुअली? श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर क्या कहते हैं कि प्रपंची खतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुद्धिः परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते. कि when person eager to achieve the liberation renounce things related to the supreme personality of Godhead, thinking them to be the material, the renunciation is called incomplete. Very profound, very practical explanation, knowledge from Rupa Goswami. Rupa Goswami कहते हैं कि जब कोई इंसान मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो क्या कहता है कि ओके, आई वांट टू रिनाउंस द थिंग्स रिलेटेड टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, इन द सेंस कि जो भी संसार में है मैं उसका त्याग करता हूं. आई एम रिनाउंसिंग फ्रॉम द थिंग्स व्हिच इज अवेलेबल ऑन दिस मटेरियल वर्ल्ड बाय थिंकिंग देम एज मटेरियल. क्योंकि संसार में जो भी है उसको लगता है कि ये सब मटेरियल थिंग है, ये पेड़ पौधे इंसान ये वो ये सब मटेरियल थिंग है, एंड आई एम रिनाउंसिंग दैट वन. और मैं जंगल में जाके बैठ रहा हूँ. तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि वो रिनाउंसिएशन क्या है? इनकम्प्लीट रिनाउंसिएशन. दैट इज नॉट द ट्रू रिनाउंसिएशन. रिनाउंसिएशन इज कंप्लीट, वो तभी पूरा है when it is in the knowledge that everything in existence belong to the Lord. जो भी संसार में है, जो आपको दिख रहा है अपनी आंखों से, वो सभी is in existence belong to the Lord. वो सब भगवान का ही है. जो भी संसार में आपके आसपास है, जिसको आप सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, जो भी चीजें संसार के अंदर है, वो सभी कुछ भगवान का है. And that no one should claim the proprietorship over that. मैं उसको कह नहीं सकता कि ये मेरा है, क्योंकि ये तो सब भगवान का जो भी संसार में है, राइट? और जब आपका कुछ है ही नहीं, तो आप उसको रिनाउंस कैसे कर सकते हैं? Because nothing belongs to you, then how can you renounce it? जब आपका कुछ है ही नहीं, तो आप त्याग किसका करोगे? So this is not the actual renunciation.
क्योंकि आप रिनाउंस किसका करते हो, जो आपका है आप उसको छोड़ो तो रिनाउंसिएशन है, राइट। अगर आपका कुछ है ही नहीं, अगर आप उसको छोड़ते ही नहीं तो रिनाउंसिएशन नहीं हुआ। इसीलिए वन हु नोज दैट एवरीथिंग इज कृष्णास प्रॉपर्टी, जब कोई सोचता है कि ये सब भगवान का है, ये भगवान की बनाई सृष्टि है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू भगवान, मेरा कुछ है ही नहीं, राइट, देन ही इज इन द रियल नॉलेज। And since everything belongs to Krishna, everything should be employed in the service of Krishna. जब सब कुछ भगवान का है तो उस सब कुछ जिसका आपको एक्सेस है, what you should do, I should engage into the service of Krishna, right? This perfect form of action in Krishna consciousness or bhakti is far better than any amount of artificial renunciation by the sannyasi. ये समझ गया लास्ट वर्ड? जब आपका कुछ है ही नहीं तो आप किसका त्याग करोगे? यू कैन नॉट से दैट आई रिनाउंस दिस वन, आई रिनाउंस दैट वन। अरे आपका वो था ही नहीं तो आपने उसका त्याग, मैं जाके कहूं कि मैंने मर्सिडीज को रिनाउंस कर दिया या मैंने टेस्ला को रिनाउंस कर दिया, आई डोंट ओन दैट, सो हाउ कैन आई से दैट आई रिनाउंस दैट वन? मैंने उसका त्याग किया, वो तुम्हारा था ही नहीं। सिमिलरली जो भी संसार में है, अगर वो भगवान का है तो आप उसका त्याग कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। द बेटर वे ऑफ रिनाउंसिएशन, श्री रूप गोस्वामी एक्सप्लेन कि अगर आपको रियली रिनाउंस करना है देन व्हाट यू शुड डू, जो भी भगवान का आपके कनेक्शन में है, वॉट एवर भगवान का जो थिंग्स है इस संसार में जो आपके कनेक्शन में है, आप उन सब को यूटिलाइज किसके लिए करो? भगवान के लिए करो, देन इट इज द रियल रिनाउंसिएशन, राइट? एनी क्वेश्चन सो फार? सो भगवान ऐसी भक्ति की बात कर रहे हैं। When Prabhupada was here, someone says that Prabhupada, the sannyasi shouldn't use the dictaphone. The sannyasi shouldn't use the car. The sannyasi shouldn't travel in the aircraft. The sannyasi shouldn't use this kind of gadgets. Prabhupada says that, yeah, sannyasi shouldn't do that, but I'm not the sannyasi. I'm the servant of the Lord. So whatever is Lord facility available to me, I'm just utilizing for the service of the Lord. So that is the best utilization. That's what Prabhupada used to say that. On the thought of श्री रूप गोस्वामी, इस रूप गोस्वामी की सीख की वजह से प्रभुपाद ने जो भी उनके पास था, whatever he has, उन्होंने सब भगवान की सेवा में झोंक दिया. That's the reason he was able to execute such a big task in such a small time, right? कितने 14 साल रहे वो आफ्टर संन्यास, राइट? उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने 88 बुक्स को ट्रांसलेट किया. It's not a joke. 88 books. श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट? ऑल उपनिषद, इतनी सारी 88 बुक्स को प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया by using all this. Not only that, he has preached like in and out. उसमें उन्होंने 108 temples की रचना की. More than 5,000 disciples he has created, sannyasis, right? पूरे समस्त विश्व का भ्रमण किया 14 बार. How? Because he was utilizing all the facilities what he has, all the technology, everything, just to engage into the Krishna's service. That is the real way of renunciation. ना कि अगर वो चाहे जाके हिमालय की पहाड़ी की चोटी पे बैठ जाए. अगर वो हिमालय की पहाड़ी की चोटी पे जाके बैठ जाते, by saying the fake renunciation or not the incomplete renunciation, what will happen? You and me wouldn't discuss the Bhagavad Gita today, right? So that is the actual renunciation. That is the actual service he has offered to the Krishna. Correct? Moving to next one, 5.3. येयः स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. कि जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है, ना कर्मफलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है. हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है. अगेन, जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है, राइट? जो भी फल आया अगर उसे घृणा नहीं करता, ना तो किसी कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है. दैट इज द रियल सन्यासी. हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर मुक्त हो जाता है. और एक तरीका भगवान ने मोक्ष का बताया, क्या? कि कर्मफलों से घृणा मत करो,
और कर्मफलों की इच्छा न करो, देन ऑल्सो यू कैन गेट द लिबरेशन। तो ऐसा सन्यासी कैसे बने, कोई प्रोसीजर है? तो हाँ है, भक्त बन के हम ऐसा सन्यासी बन सकते हैं, क्योंकि जो भक्त है वही सही में सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्मफल से ना तो घृणा करता है, ना ही उसकी कोई आकांक्षा करता है। जैसे अगर भक्त के लाइफ में कुछ अच्छा घटता है, राइट, तो उसका मूड क्या रहता है कि जो सही मिला वो ठाकुर की कृपा से मिला। भगवान कितने दयालु हैं कि मेरे पे इतनी अनुकंपा की, मुझे ये सब दे दिया, जो भी मिला वो ठाकुर इज्जत से मिला। वो उस पर कोई घृणा नहीं करता अगर अच्छा मिला तो। अगर कुछ बुरा मिला तो भी उससे कुछ घृणा नहीं। वो क्या सोचेगा, अरे देखो भगवान कितने दयालु है, मुझे तो एक तलवार का घाव होने वाला था, ठाकुर जी ने एक सुई की नोक से मुझे बचा लिया, राइट। सो जो सही मिला वो भी ठाकुर कृपा से मिला, और जो गलत मिला वो तलवार के घाव जैसे था, जो सुई की घाव से गया। तो ऐसा सन्यासी जो है, ऐसा भक्त जो है, वो भगवान की भक्ति के आश्रित होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक संबंध को जानता है। वो अपनी स्थिति को जानता है कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है। He knows the relationship between the he and the Lord. So भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण है और वो स्वयं उसका अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान हमेशा पूर्ण होता है, राइट। सो अगेन आप गोइंग टू 5.3, जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है और ना कर्मफल की इच्छा करता है, वही नित्य सन्यासी है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन ऐसा सन्यासी बनना कैसे पॉसिबल है? You just be the devotee. As soon as you become the devotee, that's a natural tendency, that's a natural what you call the behavior you're gonna reflect. जो भी अच्छा मिला ठाकुर जी ने करके दिया, और जो बुरा मिला चलो ठाकुर जी ने बड़े खतरे से मुझे बचा लिया। And that mood when you're carrying in your heart, आप इस कैटेगरी में आते हो जो भगवान समझा रहे हैं कि ना तो कर्मफलों से घृणा करता है वो इंसान, और ना ही कर्मफल की इच्छा करता है। He won't do anything which is I want to have this one, I want to have this. He will do whatever. Okay, इसकी जरूरत है, so let me do this. That is what Krishna is asking. जैसे नरसिंह मेहता, Narsi Mehta was living in a very simple devotee life. He was also a father of a son and the daughter. तो जब उसकी बेटी का श्रीमंत था, बेबी शावर, तब उसके जो ससुराल वाले थे वो बहुत परेशान कर रहे थे कि आपको ये मंगवाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बेटी को भेज देंगे। तो नरसिंह मेहता तो यहाँ से निकले, बोले चलो ठाकुर जी ने ये करने को बोला है तो हम ये कर देते। तो then he went for the baby shower, for the Shrimantam ceremony of his daughter, and whatever the things was there, he was completely dependent on the Krishna. But उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा because I am devotee. He says whatever I have in my capacity I will go and serve, because that is also my sansar. But Krishna came and helped him to execute the baby shower in such a elaborate way. कहने का तात्पर्य कि he कर्मफलों की ना घृणा किया उसने और ना ही किसी की इच्छा की। Whatever Krishna put in the situation, he execute exactly what is right. Any questions so far? .4 and 5.5. Again, everyone's camera is off. 5.4, 5.5. सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम अपि अस्थितः संयुग उभयोर विदन्ते फलम। कि अज्ञानी ही भक्ति योग को भौतिक जगत के सांख्य या एनालिटिकल स्टडी से भिन्न समझता है। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल। यहाँ पे एक्चुअली 5.4 एंड 5.5 भगवान ट्राइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कर्म योग एंड द सांख्य योग। सांख्य अर्थात द एनालिटिकल स्टडी। देयर इज अ कल्ट, देयर इज अ संप्रदाय who progress into the knowledge or the ज्ञान through the analytical study. एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देता हूं तो एक इंसान होता है जिसको जानना है कि गाड़ी कैसे चलती है, राइट। तो दूसरा इंसान को भी जानना है कि गाड़ी कैसे चलती है। पहला इंसान क्या करता है, अच्छा ये टायर के ऊपर एक इंजन रखा है, इंजन के अंदर ईंधन डाला जाता है, ईंधन के बाद उसको फायर किया जाता है कार्बोरेटर में, फायर होने के बाद पिस्टन आगे पीछे होता है, पिस्टन आगे पीछे होता है, उससे रोटेशन क्रिएट होता है, रोटेशन को ट्रांसफर किया जाता है गियर के द्वारा, एंड देन द व्हील इज गेटिंग मूव, एंड एज सून एज द व्हील इज गेटिंग मूव
ऊपर जो बैठा हुआ जो ड्राइवर है, then he is trying to control the vehicle and the vehicle move forward. That is the way of analytical study. The second person is, okay, there is a driver is sitting inside who is driving the vehicle. That's enough for him. And let me talk to the driver. So there are two people. One is doing the knowledge or bhakti through analytical study, and one is the person who is simply doing the devotion. So भगवान इस दो श्लोक में उसका अंतर समझा रहे हैं, सांख्य वर्सेस भक्ति. So जो अज्ञान इंसान है, भगवान कह रहे हैं वही सांख्य और डिवोशन के बीच डिफरेंस क्रिएट करते हैं, राइट? अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य योग से भिन्न कहते हैं. जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल की प्राप्ति कर देता है. एंड द 5.5 कृष्णा सेज दैट यत् सांख्ये प्राप्तये स्थानम तद योगेर अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति. कि जो यह जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्त प्राय स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, या भक्ति द्वारा प्राप्त स्थान सांख्य द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, वो इस तरह सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में समझता है, राइट? इफ so basically who thinks that both are same, you can get the result through both of them, that is the person who is seeing as it is. If it's because Sankhya Yoga is something different which you are not come in contact with that, so I haven't analyzed too much into it because it's too much detail which you don't need right now, right? So यहाँ पे simple से दो example दिया है कि सांख्य philosophy क्या है, chapter 11 में भगवान समझाते हैं, और कपिल महाराज भी अपनी माता देवहूति को सांख्य योग समझाते हैं. तो what is the difference between सांख्य versus devotional service? तो सांख्य योग क्या है? Philosophical research means Vedanta Sutra, by which a जीव needs to find the ultimate goal of the life and soul of existence. कि आत्मा कौन है, अल्टीमेट गोल इस संसार का क्या है, इस जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, ये सब अगर उसको समझना है वो पृथक्करण करता है, वो वेदांत सूत्र का अध्ययन करता है, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासु जो हमने कहा वैसे, राइट? सो दैट इज द फाइंडिंग द वे ऑफ लाइफ, फाइंडिंग द वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ, फाइंडिंग द वे ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ योर आत्मा, फाइंडिंग द वे ऑफ अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ. वो सब वो कैसे पता करता है? गोइंग थ्रू द एनालिटिकल स्टडी. द पर्सन हु इज वेरी इंटेलेक्चुअल, जो ब्राह्मणिकल नॉलेज को ज्यादा बिलीव करते हैं, जो शास्त्रों में ज्यादा बिलीव करते हैं, वेदांत सूत्र में ज्यादा बिलीव करते हैं, दे आर गोइंग थ्रू दैट चैनल. There is a specific people. You came in contact with the devotees also. The devotees who is too much intellectual. उनको सिंपल सी बात कि भगवान ने भैया गोवर्धन उठा लिया अपनी उंगली पे ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए. अब वो उसके अंदर इतना डिटेल में जाते हैं, इतना उसका पृथक्करण करते हैं कि आपको लगता है कि ये कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है. बट दैट्स फाइन. इट इज हिज कैटेगरी ऑफ डिवोशन. उसको उसमें मजा आता है, एनालिटिकल स्टडी में मजा आता है. इट्स टू मच एनालिटिकल, राइट? और दूसरा क्या है? डिवोशनल सर्विस. डिवोशनल सर्विस इज व्हाट? एंगेज हिमसेल्फ इनटू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड हु इज अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. जैसे चैतन्य महाप्रभु जब गए थे श्रीरंगम, तो वहां पे एक ब्राह्मण को देखा. एक ब्राह्मण को जिसको पढ़ना नहीं आता, वो गीता को ऐसे पकड़ी हुई है और उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई तुमने गीता उल्टी पकड़ी हुई है, तुम्हें पढ़ना आता है? तो बोले नहीं. तो बोले क्या हुआ? देन व्हाई यू आर क्राइंग? आर यू रीडिंग एंड क्राइंग? बोले नहीं, मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ. इट्स नॉट क्राइंग, आई एम क्राइंग इन द एक्सटेसी, कि मैं देख रहा हूँ कि प्रभु कितने दयालु है, कितने दयालु है कि अपने भक्त के लिए सारथी बनना तक स्वीकार कर लिया. He just crying on for them. Devotion is everything. He don't go in a detail of the knowledge. That is the devotion, right? Engage himself into the service of the Lord, who is the ultimate goal of life. एक बहुत सारी खिचड़ी मचा के पूरा रिसर्च करके वहां तक पहुंचता है. और एक सिंपल, राइट? ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुरानी श्री राधा रानी, उसके लिए इतना इनफ है कि हमारे ठाकुर जी भगवान है और राधा रानी हमारी ठाकुरानी है. एंड दैट्स व्हाई ही इज एंगेज हिमसेल्फ इनटू द डिवोशनल सर्विस. तो एक सिंपल सा एनालॉजी अगर समझे, एक एग्जांपल समझे, तो एक कैटेगरी क्या है? वन इज टू फाइंड द रूट ऑफ द ट्री. वो पेड़ को पकड़ता है, खोदता है, चेक करता है और उसके रूट समझता है कि अच्छा ये रूट्स की वजह से ये ट्री बना हुआ है. सो वन इज टू फाइंड द रूट ऑफ द ट्री, दैट इज कॉल्ड सांख्य. एंड अदर इज टू वाटर द रूट डायरेक्टली. उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भक्ति से उस रूट के ऊपर पानी डालता है. सो दोनों ही रूट तक पहुंचते हैं. किंतु आगे भगवान क्या कह रहे हैं 5.6 में?
संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुपयोगतः योग योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म ब्रह्म योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरणादि गच्छति। कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी या खुश नहीं रह सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। भगवान ने दोनों कैटेगरी को सेम बताया, एनालिटिकल स्टडी वर्सेस डिवोशन। आप पूरा रिसर्च करके भगवान के चरणों में जाए, परफेक्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ गोइंग। अगर आप सिंपली भक्ति की तरफ से जाए तो भी अच्छा है, लेकिन भगवान 5.6 में कहते हैं कौन सा श्रेष्ठ है, कि भक्ति में लगे बिना अगर केवल कर्मों का परित्याग करने से कोई खुश नहीं रह सकता। प्रॉब्लम ये है, इफ यू गो विद द एनालिटिकल स्टडी यू आर नॉट एबल टू बी हैप्पी 100%, लेकिन भक्ति में लगा हुआ इंसान could be happy. Okay, let me just move. Okay, so दो प्रकार के सन्यासी होते हैं, right? सन्यासी जो सांख्य फिलोसॉफी का अनुकरण करते हैं, एनालिटिकल स्टडी, एंड दूसरा जो है वो भगवत सन्यासी, जो भागवतम, श्रीमद् भागवतम का अनुसरण करते हैं, श्री भक्तमाल का अनुसरण करते हैं, श्री रामायण का अनुसरण करते हैं। वो अपनी समस्त इंद्रियों का संकलन द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, right? What is the difference between them? One is just doing the dry philosophy. He's just going into analytical study, पढ़ रहा है, अच्छा ये तत्व हुआ, ये जीव हुआ, everything. He's also doing the right path, but it's very dry. यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? भक्त को मजा किसके अंदर आएगा? The दूसरा is जो भागवतम का अनुसरण करता है, जो भक्तमाल का अनुसरण करता है। हम सोचते हैं ना कि अरे भक्तमाल की कथा सुनाओ, उसमें आनंद आता है, राइट? वह अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के अंदर लगाता है। Is not a dry. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यति। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप कैसे भक्ति करो, अपनी इंद्रिया, ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी मीन्स भगवान खुद, और ऋषिकेन मीन्स आपकी इंद्रिया, अपनी समस्त इंद्रियों को यूज करके ऋषिकेश जो भगवान है उनकी सेवा कीजिए, तो ही आपकी भक्ति उच्चतम है। क्योंकि दोनों ही सही है, जैसे भगवान ने 5.2 में कहा, लेकिन भगवान यहाँ साधक की खुशी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुश नहीं है तो साधना एक अवधि लगेगी। कितना समय हुआ, चलो कितना समय हुआ, और कितना समय लगेगा मुझे अपनी साधना कंप्लीट करने में। किंतु अगर साधन सहज है, अगर इफ यू डू द डिवोशनल सर्विस इजीली, सहज तरीके से करते हो, जो आपका स्वभाव है, आप अपनी सभी इंद्रियों को एंगेज करके करते हो, क्या होगा? साधन एक आनंद हो जाएगा, एक आनंद का स्रोत बनेगा। तो जब कल होगा, आप अपनी उस समय के लिए इंतजार करोगे, अरे मुझे भगवान की भक्ति करनी, मेरा समय हो गया। अगर आप वो करोगे नहीं तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से, अरे नहीं, मुझे आज मेरा वो आनंद नहीं मिला, मुझे वो आनंद का, क्योंकि भक्ति फिर आनंद का एक स्रोत बन जाएगी, क्योंकि आप अपनी सभी इंद्रियों को वहां पे एंगेज कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग रस आउट ऑफ इट। और देखिए, शुष्क जो अध्ययन है सांख्य का, वो कभी कभी साधक को गिराने का भी कारण करता है, क्योंकि जीव उत्सव प्रिय है, राइट? मात्र आनंद का अभिलाषी। देखिए, इसीलिए भारत के अंदर हमारा जो सिविलाइजेशन है उसमें हर महीने में कोई ना कोई उत्सव बताया गया है। जो डिवोशनल सर्विस है, व्हेन यू डू द भक्ति, देयर आर लॉट ऑफ अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर चलो आज जन्माष्टमी है तो फिर राधाष्टमी आया, उससे पहले बलराम जयंती आया, उसके बाद गौरांग महाप्रभु की जन्म जयंती, then Ram Navami, then Narsimha Jayanti, then Vamana Jayanti, and this and that. Even we have Diwali. There are so many things we lined up. The reason is the जीव wants to celebrate. जीव को आनंद अच्छा लगता है, वो आनंद का अभिलाषी है। तो शुष्क जो अध्ययन है वो उसको कुछ समय तक अच्छा लगेगा, लेकिन if we don't derive the happiness from it, if we don't derive the enjoyment from that, then वो धीरे धीरे कहीं और आनंद की तलाश करेगा। And that is the reason, if you just doing the dry philosophy, if you just going with the dry execution, वो आपको गिराने का कारण भी बन सकता है। जैसे महर्षि विश्वामित्र, जब विश्वामित्र ने जंगल के अंदर अपने सभी इंद्रियों को कंट्रोल करके साधना में बैठने का प्रयत्न किया, वो पॉसिबल नहीं हुआ। He fall down because of the main का। क्यों? क्योंकि his इंद्रिया was not engaged into the devotional service, and that's the reason he fall down। जबकि उसके विपरीत अगर आप देखोगे, हरिदास ठाकुर, राइट? हरिदास ठाकुर आप सब जानते हो, हरिदास ठाकुर was also doing the devotional service,
he was also worshipping the Lord into the in his kutir. वहां पे उस समय की सबसे फेमस वरांगना नगरवधु अर्थात वेश्या को भेजा गया एज अ ट्रैप। लेकिन क्या हुआ, वो खुद भक्ति में लग गई, हरिदास ठाकुर के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हरिदास ठाकुर was serving with all his senses to Lord Krishna, right? इसीलिए मात्र जो सोल है, इट इज आनंद का अभिलाषी है। अगर वो उसे ना मिले तो वो कहीं बाहर तलाशता है, और इस भंवर में गिरना उसका सहज होता है। एग्जैक्टली जबकि वही सहज अध्ययन अगर आनंद की अनुभूति के साथ हो, वो हमेशा आनंद का वर्धन करते रहता है। वह साधक कभी गिरता नहीं है, जैसे मैंने हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया। सो शीघ्र ही वो परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। सो दैट्स द रीजन कृष्णा सेज बोथ आर गुड, सांख्य इज आल्सो गुड, philosophy way of understanding is also good, and devotion is also good. आपको दोनों तरीके से मेरी प्राप्ति होगी, लेकिन भगवान कह रहे जो साधक का जो हित जिसके अंदर है वो है भक्ति। ऋषिकेन ऋषिकेश सेव्या, आप अपने इंद्रियों को यूज करके भगवान की सेवा कीजिए, तो देन यू वोंट फील ड्राई इनटू द डिवोशन, एंड दैट डिवोशन इज गोना बी हेल्पफुल टू गेट द नेक्टर और गेट द हैप्पीनेस आउट ऑफ इट। वो आपका एक आनंद का स्रोत भी बनेगा। Devotion cannot be dry. If you love someone, why you love? I love my kids. Why? Because I get happiness out of it. When I love them, I interact with them. And that's the reason मेरा जो प्रेम है वो वर्धमान रहता है। अगर मैं किसी से लव नहीं करूं, then it is a stagnant, right? Similarly, Krishna says that अगर आपका प्रेम वर्धमान है, अगर आपकी भक्ति अंदर आपको प्रेम मिलना शुरू हुआ, तो आप नई नई ऊंचाइयों को छुओगे। लेकिन अगर आपको एक सिर्फ वो साधन एक ड्राई लगेगा, तो आप कुछ समय करोगे, फिर आपको अवधि रहेगा, अरे कितना समय हुआ, अरे अभी कल भी करना पड़ेगा मुझे ये, अच्छा कर लेता हूँ, परसों भी, एंड देन यू गोना कीप काउंटिंग, एंड इफ यू गोना कीप काउंटिंग दैट मींस यू आर नॉट गेटिंग रसा आउट ऑफ इट। अगर आपको लगे कि अरे मेरा आज भगवान की सेवा नहीं हुई मेरे से, दैट मींस यू आर गेटिंग हैप्पीनेस आउट ऑफ इट। और भगवान यही कह रहे हैं, क्योंकि आप अपने इंद्रियों को उसके अंदर समर्पित कर रहे हो और वहां से आपको रस मिल रहा है। तो दैट इज द चैतन्य महाप्रभु आल्सो सेज दैट ऋषिकेन ऋषिकेश सेव्या भक्ति उच्यते। वही भक्ति सबसे सर्वोपरि है जो अपनी समस्त इंद्रिय ऋषिकेन को यूज करके भगवान ऋषिकेश की सेवा कर रहा है। एंड दैट इज व्हाट कृष्णा ट्राई टू एक्सप्लेन। हैप्पीनेस कहाँ से भक्त को ज्यादा मिलेगी? भक्ति के जरिए। ड्राई फिलोसॉफी के जरिए उसको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, तो उसका फॉल डाउन इज वेरी नेचुरल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे आई जस्ट समराइज एवरीथिंग, राइट? Chapter number 5 to 5.1 to 6. So what is the difference between renunciation versus work in devotion, right? Simply renunciation as the other monk does it, right? Going in a Himalaya, going tapasya, उसके लिए क्या prior purification चाहिए आपको। अगर आप purification कैसा, आप अलग अलग वर्ण से निकल के ब्रह्मचर्य गृहस्थ उससे निकल के आप तब के अगर आप जाओगे, आपने सब कुछ देख लिया है, then you are purified and then you able to renounce completely, वरना fall down is very easy। आप वहां पे जाके भी जंगल में बैठोगे लेकिन आपको संसार याद आएगा, राइट? आप जंगल में बैठ के भी आपको अगर घर याद आएगा तो वो रिनाउंसिएशन आपको गिराने वाला साबित होगा। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे लोग भगवा चोला तो पहन लेते हैं, सफेद चोला तो पहन लेते हैं, गॉडमैन तो बन जाते हैं, लेकिन होता क्या है, दे फॉल डाउन फॉर द सेक्स और द वेल्थ, राइट? बिकॉज उनका रिनाउंसिएशन पक्का नहीं, उनका प्योरिफिकेशन पक्का नहीं हुआ, राइट? So simply renunciation need to prior purification। आपका पहला purification होना जरूरी है। लेकिन भक्ति का बेनिफिट क्या है? Work itself is purifying, the process itself is purifying, भक्ति itself is purifying, right? जैसे मैंने हरिदास ठाकुर का एग्जांपल किया कि वो जो नगर वधु थी, वो जो वेश्या थी, उसने क्या किया? She just came and sit in front of Haridas। That is also the devotion। वो नगर वधु ने किसका संग किया? हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर के जो जिह्वा से जो भगवत नाम प्रकट हो रहा था, उसने सिर्फ सुना वहां पे। दैट इज द श्रवणम। उसने जैसे 9 limbs of devotion, right? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो उस वेश्या ने, उस नगरवधु ने क्या किया? एक स्वरूप सिद्ध भक्त की संगति का सत्संग करके उसके जिह्वा से प्रकट होने वाले एकदम प्योर भगवत नाम का स्मरण श्रवण किया। दैट भक्ति, वो जो श्रवणम, दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज प्योरिफाइंग हर। जब उसने 2 दिन वो भगवत नाम का स्वर सुना तो वो खुद प्योरिफाई हो गई। उसने कुछ नहीं किया, दैट प्रोसेस इटसेल्फ प्योरिफाइड।
आपको कुछ प्योरिफिकेशन की जरूरत नहीं। और 2 दिन के बाद उसने हरिदास ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और उसने भगवत नाम की दीक्षा प्राप्त की। तो दोनों में पहला डिफरेंस क्या है? एक नीड्स अ प्रायर प्योरिफिकेशन बिफोर यू टेक दैट स्पेसिफिक डेजिग्नेशन ऑफ सन्यासी, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन फॉर द वेल्थ एंड द वुमन। और दूसरा क्या है? इट्स इटसेल्फ द प्रोसेस इज प्योरिफाइंग। दूसरा सिंपली ज्ञान इनसफिशिएंट फॉर लिबरेशन। जैसा हमने डिस्कस किया कि अगर मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, वो इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको उसके ऊपर एक्ट भी करना पड़ेगा। सेकंड इज रिस्क ऑफ फॉल डाउन। जैसा मैंने कहा, विश्वामित्र फॉल डाउन बिकॉज ऑफ द सेक्लूडेड रिनाउंसिएशन। जबकि भक्ति में क्या है? सक्सेस इज गारंटीड, राइट? आप भगवान के किंगडम के अंदर पहुंच ही जाओगे। सिर्फ भक्ति की प्रोसेस इतनी बेनिफिशियल है, सोचिए भक्ति कितनी बेनिफिशियल रहेगी। जैसे एग्जांपल हमने दिया था अजामिल का। अजामिल ने क्या किया था? अजामिल ने ये न केन प्रकीर्ण, उसने सिर्फ नारायण शब्द का जप किया। कैसे? अपने पुत्र को बुलाने के लिए, उसको डांटने के लिए, उसको खिलाने के लिए, उसको लाड लगा कि नारायण आओ, नारायण बैठो, नारायण सो। जाने अनजाने उसने सिर्फ भगवत नाम का जप किया और उसका बेनिफिट क्या हुआ? सक्सेस इज गारंटीड। जब यमदूत आए तब विष्णुदूत ने उसकी रक्षा की। एंड देन एट द एंड व्हाट विल हैपन? अजामिल वेंट टू द वैकुंठा। सो सक्सेस इज गारंटीड। चौथा, इनकम्प्लीट रिनाउंसिएशन, राइट, वर्सेस कंप्लीट रिनाउंसिएशन। नॉर्मल रिनाउंसिएशन क्या कहते हैं? त्याग या वैराग्य कि भैया देखो मैंने सब छोड़ दिया, मैं तो सन्यासी बन गया, मैं हिमालय में चला गया। दैट इज इनकम्प्लीट, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं तो आप छोड़ोगे क्या? इट इज नॉट द राइट रिनाउंसिएशन, इनकम्प्लीट है भक्ति रसामृत सिंधु के हिसाब से। एंड डिवोशन में क्या होता है? जो भी आपके पास है, आसपास जो भी है, आप उसको भगवान की शरण में लगाते हो, भगवान की सेवा में लगाते हो। सो दैट इज एक्चुअली द कंप्लीट रिनाउंसिएशन। डिवोटीज एंगेज whatever they have, their wealth, their energy, their qualities, their skills, everything whatever they have around them, surround them with Krishna's blessings, वो सबको क्या करते हैं? भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे हम गोवर्धन अभी सेलिब्रेट करेंगे, whatever the best you have, you're gonna offer to the Lord, right? That is the, though technically from the outside world उसको आप संन्यास नहीं कहोगे, but that is the topmost संन्यास activity, right? So पांचवा, find the root versus water the root। सांख्य से क्या करोगे आप? फाइंड द रूट, कि भैया क्या है इस संसार के जगत का बेस क्या है। यू फाइंड विद सो मच ऑफ स्टडी एंड कहाँ पे आओगे? अच्छा, विष्णु इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, इज द रूट। और दूसरा क्या करोगे? भगवान नारायण की वैसे ही आप सेवा कर रहे हो, सो यू आर वाटरिंग द रूट। सिक्स्थ वन इज प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज बेसिकली टू डिटैच फ्रॉम द मैटर। लेकिन भक्ति में क्या होगा? यू आर टेक्निकली अटैचिंग टू द कृष्ण, राइट? तो डिटैच होके आपको क्या करना है? आप फिर डिटैच हुए किसी से, आपको किसी ना किसी से अटैच होना पड़ेगा। तो विद दिस सांख्य प्रोसेस, अच्छा मुझे ये भी नहीं करना, ये संसार है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड एंड देन यू स्टार्ट डेवलपिंग द डिटैचमेंट फ्रॉम दिस मैटर। जबकि यहाँ पे अटैचमेंट से बाकी सब अपने आप ही छूट जाएगा। आप भक्ति में आओगे तो बाकी सब मैटर अपने आप ही छूट जाएगी। सो अनदर बेनिफिट। नाउ नो हैप्पीनेस, इसके अंदर हैप्पीनेस नहीं, राइट? जैसे भगवान ने कहा कि सांख्य और भक्ति दोनों ही अच्छी है, लेकिन इसके अंदर भक्त को खुशी नहीं मिलेगी बिकॉज वो अपनी इंद्रियों को उसके अंदर झोंक नहीं रहा। जबकि भक्ति के अंदर क्या होगा? उसको हैप्पीनेस मिलेगी। सो इज गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग, उसको अंदर से नेक्टर मिलेगा। जब उसको आनंद मिलेगा तो ही इज गोना कीप ऑन डूइंग। देखिए डिफरेंस बिटवीन सकाम कर्म, समाधि एंड भक्ति, व्हाट इज दैट? सकाम कर्म जो है उससे जो मिलने वाली खुशी है वो प्रति घटती रहती है। सेम एग्जाम्पल, आप किसी चीज को खरीदते हैं, अगर आपको लगता है कि चलो आई वांट टू बाय समथिंग व्हिच कैन गिव मी हैप्पीनेस, से आईफोन, आई एम गेटिंग एन आईफोन, मुझे अच्छा लगेगा। थोड़े समय बाद आपको उतनी हैप्पीनेस नहीं होगी जितनी आपको पहले दिन मिली थी जब उसको लाके या उसको लाने से पहले, राइट? बिकॉज दैट इज व्हाटएवर द सकाम कर्म यू डू, that happiness is going to decrease day by day out of that one, whatever you're going to derive. Similarly for the humans also, you think that this person should come in my life, slowly उससे मिलने वाली हैप्पीनेस भी आपकी घटती रहेगी। तो सकाम कर्म का प्रॉब्लम क्या है? whatever you do, उससे मिलने वाली जो हैप्पीनेस है वो दिन ब दिन घटती रहेगी। जो समाधि है, समाधि में भी आपको हैप्पीनेस मिलेगी। दैट्स व्हाई पीपल गो इन अ समाधि फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है? दैट हैप्पीनेस इज स्टैग्नेंट। वो हैप्पीनेस ना बढ़ेगी ना घटेगी, वो स्टैग्नेंट रहेगी। दैट्स व्हाट द डिसएडवांटेज ऑफ द समाधि।
लेकिन जो भक्ति है, भक्ति से जो हैप्पीनेस मिलती है वो प्रतिवर्धनम, वो हमेशा एक बाय एक आपको उसमें हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी. दैट्स द बेनिफिट ऑफ द हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम द भक्ति, राइट? इज ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू, इट्स प्रीति वर्धनम. इसीलिए आप साधना में दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की कर रहे हो. अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप समझ रहे हो कि आपकी प्रोसेस में कोई ना कोई गलती है, या तो आपकी निष्ठा में कोई ना कोई गलती है, या आप सही तरीके से साधना नहीं कर पा रहे, राइट? सो दैट इज व्हाट द हैप्पीनेस कंपैरिजन, किससे कितनी हैप्पीनेस मिलती है, राइट? आठवां जो है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यहाँ पे सेंस रिस्ट्रिक्टेड है, कैन नॉट रियलाइज द ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस. जबकि यहाँ पे आपकी सभी सेंस ऋषिकेन ऋषिकेश सेव्या, अपनी सभी सेंस को मिला के भगवान ऋषिकेश की सेवा करते हो, राइट? दैट इज द बेनिफिट. नाइन्थ एंड द टॉप मोस्ट एंड द बॉटम लाइन इज, आपको इसमें टेक मैनी बर्थ. If you go with the knowledge route, you take many birth. Reason is आप upward stepping कर रहे हो. अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है, राइट, स्टेयरकेस चढ़ के, चलिए 10 माले की लिफ्ट है, तो आपको अपनी एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है, मोर एनर्जी. यू स्टेप 1 फ्लोर चढ़ा, 2nd फ्लोर चढ़ा, 3rd फ्लोर चढ़ा, लाइक दिस, राइट? सो आप अपनी एनर्जी यूज करके ऊपर जा रहे हो. जबकि भक्ति के अंदर क्या है, आप किसकी लिफ्ट में बैठे हो? कृपा की लिफ्ट में. तो आपको एक तो लिफ्ट मिल जाएगी कृपा की, और आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपने उसका एफर्ट नहीं लगेगा. यू विल मूव इन द भक्ति, यू विल सेल इन द भक्ति विदाउट एफर्ट. तो यहाँ पे आपको मैनी बर्थ्स नहीं लेने पड़ेंगे. यू क्विकली अचीव द भगवान विदाउट एनी डिले. एनी क्वेश्चंस बिफोर वी कंक्लूड दिस? Okay. So we'll stop today here. It's already 1 hour 15 minutes. And we'll discuss about what I mentioned about Mirabai and the temple run next week if you want, because it's going to take another half an hour probably. Yeah, sure. Okay. Okay, फिर then हरे कृष्ण प्रभु. yes. प्रभु, आई हैव अ क्वेश्चन. सो आपने कहा जैसे कि जो रिनाउंसिएशन है वो भक्ति वाले हिसाब से करी जाए तो वो अच्छी है, रादर देन लाइक पूरा मतलब जैसे संन्यास ले लेना और जंगल में जाना, उसमें हैप्पीनेस नहीं मिलती. तो जो ये बड़े बड़े साधु मुनि और ये सब हैं वो जाते हैं, तो फिर अगर वो तो मतलब उनको तो ऑलरेडी ज्ञान की प्राप्ति होती है यूजुअली, राइट? तो उनको तो ये सब पता होगा, तो फिर वो क्यों जंगल में जाते हैं? वो फिर यहीं मतलब घर पे बैठ के भक्ति क्यों नहीं करते? क्योंकि दे आर नॉलेजेबल, राइट? दैट्स व्हाई दे आर इन दिस पाथ. तो वो लोग क्यों वहां जाते हैं और मतलब भगवान की भक्ति या ऐसे मतलब वहां पे नहीं करते और वहां जाते हैं? देखिए 3 चीजें मैंने जो बताई, जैसे प्रीवियस श्लोका विच इज 5.6, भगवान ने कहा कि दोनों ही रास्ते श्रेष्ठ हैं, राइट? दोनों ही रास्ते श्रेष्ठ है, लेकिन भक्त को ज्यादा खुशी, जो एक सन्यासी है वो, जैसे मैंने कहा कि इज गोइंग टू द सांख्य, सेकंड इज गोइंग थ्रू द डिवोशन वे, राइट? दोनों ही सन्यासी श्रेष्ठ है. भगवान ने ये नहीं कहा कि इसको मैं नहीं मिलूंगा. आई नेवर सेड दैट, नेदर कृष्णा सेज दैट, ही नेवर सेज दैट यू वोंट गेट इट. बट द प्रॉब्लम इज वन टेक्स, जैसे ये 9th पॉइंट, वन टेक्स मैनी बर्थ, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज, उसमें जो डिवोटी है या सन्यासी है उसको इतना रस नहीं मिलता जितना भक्त को मिलता है. सो भक्त को किस में ज्यादा मजा आएगा? भक्ति में मजा आएगा. लेकिन जैसे मैंने कहा, देयर आर सम डिवोटीज whom you come in contact, right, who likes the analytical evaluation, जो नॉर्मल चीजों को भी बहुत गहन तरीके से समझते हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो द कैटेगरी, द पीपल हु इज इंटेलेक्चुअल, जो पीएचडी हैं, जो डॉक्टर हैं, जो बहुत ज्यादा साइंटिस्ट कैटेगरी के पीपल हैं, उनको सिंपल भी भगवान की लीला अगर है तो उसको इतना चर्निंग करेंगे, उसमें से इतने से इतने तत्व निकालेंगे कि आपको समझ आ रहे हैं सिंपल सी लीला है, उसमें इतना सोचना क्या, राइट?
बिकॉज इट्स नॉट बैड बट देयर माइंडसेट इज सेट लाइक दैट। उनको कोई भी चीज सिंपल तरीके से नहीं समझना, उनको बहुत इवेल्युएट करके समझना है। तो भगवान ने कहा कि इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट, दे बोथ आर गुड। Only the problem is the comparison between both is one, the bhakt won't not get that much happiness derived from it, who is the sannyasi category, who is asik, जो सबको छोड़ के बैठा हुआ है संन्यास के अंदर। सोचिए वहां पे कंदमूल खा के बैठा हुआ, राइट, हिमालय की ठंडी तपती उसमें बैठा हुआ है, क्या आपको लगता है उसको इतना मजा आ रहा है कंपेयर टू द डिवोटी हु इज सिटिंग हियर एंड हैविंग 56 भोग? कुछ तपस्या नहीं करना है, भगवान माला जपनी है, माला एंड लाला हो गया, राइट। तो भगवान इंसान जो साधक है उसकी दृष्टि से कह रहा है कि दोनों ही श्रेष्ठ, दोनों ही मेरे को मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से जब ऋषिकेन ऋषिकेश सेव्या भक्ति रुच्यते, चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं कि ये जब आप अपनी इंद्रियों को यूज करके, इंद्रियों को सप्रेस करके भी आप कर सकते हो, जो आपने बोला योगी करता है, राइट, साधक करते हैं जो हिमालय में बैठे, वो सप्रेस करके कर रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं, वो इतना अच्छा श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उसमें आपको बहुत गलाना पड़ेगा अपने आप को, और उसमें फॉल डाउन भी पॉसिबल है, बिकॉज यू आर नॉट एंगेजिंग ऑल योर सेंसेस, यू आर सप्रेसिंग देम। तो जैसे विश्वामित्र का एग्जांपल लिया कि जब मेनका आई तो सप्रेस सेंस ने जंप आउट किया, राइट, एंड ही फॉल डाउन, राइट। जबकि यहाँ पे अगर जब इंसान सप्रेस नहीं कर रहा, ऋषिकेश से, या वो अपनी सभी इंद्रियों से भगवान ऋषिकेश की सेवा कर रहा है, तो उसका फॉल डाउन जो है वो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो पहली बेनिफिट क्या है, उसको रस मिल रहा है। दूसरी बेनिफिट, उसको ज्यादा अपने को तपाना नहीं है। चौथी, उसका फॉल डाउन का चांसेस बहुत कम पड़ जाता है। और पांचवा, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत फटाफट निकल जाएगा, राइट। और तीसरा, दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज प्योरीफाइड। वहां पे क्या है कि आपको प्योरीफाई होके जंगल में जाओ तो फायदा है, वरना क्या होगा, बहुत सारे लोग वहीं से हिमालय से ही आते हैं, कोई योग पीठ खोल लेते हैं, कोई धर्मशाला खोल लेते हैं, कोई चटनी चूर्ण की दुकान खोल लेते हैं, कोई मेडिकल की दुकान, मीन्स क्या बोलते हैं, टैबलेट्स बनाने की चीजें खोल लेते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग सेंस एंजॉयमेंट ओवर देयर। उनको दैट कुड बी एनीथिंग, राइट, इट कुड बी वेल्थ, इट कुड बी पावर, इट कुड बी वुमन, वो कुछ भी उनको वहां पे नहीं मिलता, दे आर नॉट एबल टू सप्रेस, दैट्स द रीजन दे कम डाउन। जबकि यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस इटसेल्फ इज प्योरिफाइड। आप जैसे भक्ति में लगे कि वो स्टार्टेड, प्योरिफिकेशन शुरू हो गया, यू डोंट रियलाइज दैट प्योरिफिकेशन इज स्टार्टेड बट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। सिंपल एग्जांपल, आप अगर देखो अपने लाइफ, anyone who is practicing the devotional service from last 5 years or last 2 years, even last 1 year, right, जब आपने भगवान नाम जपना शुरू किया, तो धीरे धीरे आपको ही पता नहीं कि आपके अंदर कितनी प्योरिफिकेशन आ गई। आप वही चीज करने की सोचिए जो आप 5 साल या 2 साल पहले कर रहे थे, आप वहां से रिबाउंस कर जाओगे। अरे इंसान ने अगर सिर्फ ऑनियन गार्लिक छोड़ा है, अगर वो भी 1 साल के बाद अगर उसको ऑनियन गार्लिक खिला दो वापस से, वो उसको जलन हो गया और उसको लगा मैं क्या जलता हुआ अब तक खाए जा रहा हूँ, उसको अंदर से गंदा फील होगा, he is trying to get out of it. It's just a simple example I'm giving. There are much more than things, right? Because this process itself is purified. वही डिवोटी अगर नाम जप कर रहा है, भगवत नाम का उच्चारण कर रहा है, कीर्तन सुन रहा है, आप उसे मूवी थिएटर में मीन्स गाने सुना दो, ये जो नॉर्मल लोग सुनते हैं ना, अरिजीत सिंह, उसको लगा दो गाना 1 घंटा, उसका सर फटने लग जाएगा। अरे वही तो मेरे पास तो पूरा एल्बम के एल्बम पड़े थे गाड़ी के अंदर, 500 सीडी का एल्बम था, आज वही सब मैंने डंप कर दिया। उसको वहां से उसको पता ही नहीं चला प्योरिफिकेशन कब शुरू हो गया और कब काम करना शुरू कर दिया अंदर से। बिकॉज द प्रोसेस इटसेल्फ इज सो बेनिफिशियल, प्रोसेस इटसेल्फ इज सो प्योरिफाइंग कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो प्रोसेस ही अपना काम करती रहती है। जबकि यहाँ पे क्या है, आपको प्योरीफाई होके जाना पड़ेगा। अगर आप प्योरीफाइड नहीं हो तो वहां से गिरना, नीचे आना बहुत आसान है, क्योंकि आपकी इंद्रिया सेटिस्फाइड नहीं है। इज दैट आंसर योर क्वेश्चन? जी प्रभु। Any further question? चलिए, we don't go to the next session, but at least give me some hint. When I said that, मैंने क्या कहा था? मीराबाई. What I said in the text, whom we gonna discuss? Yes, मीराबाई प्रभु, you said. Yeah. जिनके अंदर श्री मीराबाई समाविष्ट हो गई थी, कौन थे वो ठाकुर? अरे कुछ तो बोलिए महाराज। ऐसे सिर्फ देख रहा है, कुछ तो बोलिए। Yeah,
Is that in Jaipur Megha, Prabhu, by any chance? Megha, you don't, because we discussed this. Let other people try. I want people to try so they can interact rather than just sitting. क्योंकि अगर आप interact नहीं करोगे तो वही होगा, फिर ये class खत्म होगा, then we'll do whatever we are doing. At least when you interact, your mind is getting those impressions, and when the time comes, that impression is going to help you to take a right decision, to act in the right way. That's the reason I'm asking the question. हम कोई बाबा जी थोड़ी है जो स्टेज पे बैठ के 1 घंटा लेक्चर देके चले जाएंगे, अरे बहुत आनंद आया. This is an interactive session, right? So I want everyone to take part into it, rather than just looking into it and listening it. Just try it. कोई भी बात द्वारकाधीश जी कुछ माता जी. द्वारकाधीश मंदिर में वो समावेश हो गई थी वहां पे. आप 50% सही है, 50% गलत है. Good, very good try, but माता जी. Anyone else? कहाँ के ठाकुर है जहाँ पे जिसके अंदर मीराबाई चली गई, अभी वो कहाँ पे है, चलिए बताइए. तो माता जी आपने कहा द्वारिकाधीश, I said 50% right, 50% not right. Or I would say, yeah, not right. I would say wrong, but not right. I'm Okay. not sure, but Jaipur Radha Govindji. You're 100% wrong. But that's a very good try actually. I want people to try it. देखिए इस ज्ञान यज्ञ में आहुति अभी कौन दे रहा, आप भी थोड़ी आहुति दीजिए. That's what I wanted. You try with the thing. That is the best thing, right? Try at least. चलिए तो आहुति अभी हमारी सासू माँ ने दी, प्रज्ञा माता जी ने दी, और कौन दे रहा है. चलिए कुछ नए पीपल जो है, प्रीति प्रजापति माता जी, शैला माता जी है, प्रभु जी पता नहीं. छाया माता जी was in a mon, वो हिमालय कैटेगरी की माता जी है. He is not gonna speak. Anyone else? श्री, कोई तो ट्राई कीजिए. चलिए गुजरात के लोगों को तो ये पता ही होना चाहिए इनफैक्ट, because this is their heart, right? And I would bet on that everyone is in this session who is from Gujarat. They have visited this place, so they should know about it. Vyasacharya Prabhu. I think he is not here now. प्रभु जी द्वारका का ही सुना है हम लोगों ने. हाँ माता जी, कि द्वारका में, हाँ द्वारका में वो यानी भगवान में लीन हो गई थी, पर कौन सी मूर्ति, वो तो उनके जो पूजा घर में होगी. सही बोला द्वारिका. प्रभु मैं ट्राई करूं, मतलब मेरे को, और someone else is speaking. Go ahead. Go ahead. Who else is there? Sailesh Prabhu, you are saying something. प्रभु मेवाड़ में तो वो रहती थी प्रभु. तो यहाँ हम द्वारिका तक आ चुके हैं, वापस मेवाड़ मत जाइए. We are right 50%. हम द्वारिका पहुंच चुके हैं. Prabhu, I don't know the answer. Like I don't know if I discuss, but if I can try, I don't know. Yeah, just... Go ahead. Shall I? Yeah, go ahead. Is it Rancho Drive, Prabhuji? Yes. Okay. In Jagannath Puri? Wrong. Sorry, Ranchod in Gujarat. Ranchod Drive. Dakor. Yeah. तो आप सही भी हैं जिन्होंने आंसर दिया. Who is Ranchod Rai? Who is in Dwarika? So yes. जिस समय मीराबाई समाविष्ट हो गई ठाकुर जी के अंदर, वो ठाकुर द्वारिकाधीश थे और रणछोड़ राय उस समय द्वारिका में विराजमान थे. तो उस समय फिर रणछोड़ राय द्वारिका से तो इसीलिए द्वारिकाधीश आप जब जाओ तो द्वारिकाधीश में जो द्वारिकाधीश की जो ठाकुर जी की प्रतिमा है वो दूसरी प्रतिमा है, सेकेंड वर्जन. द फर्स्ट जिसकी स्थापना श्री वज्रनाभ जी ने की थी, जिसके अंदर मीराबाई समाविष्ट हो गई थी, वो ठाकुर जी बैलगाड़ी में बैठ के डाकोर आ गए. तो जो आपको दर्शन होंगे रणछोड़ राय की प्रतीति में, वो डाकोर में होंगे.
और इसीलिए जब मीराबाई अंदर गई थी ठाकुर जी के अंदर, तो उनका पल्लू जो था वो बाहर रह गया था, उनकी चुन्नी जो थी वो बाहर रह गई थी। इसलिए आज भी आप जाओ तो उसी इंसिडेंट को याद रखने के लिए ठाकुर रणछोड़ राय और ठाकुर द्वारिकाधीश दोनों के कमर में वो चुनरी बांधी जाती, वो मीराबाई की चुनरी। एंड दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू डिस्कस टुडे, ऑल दिस। ओके, तो ये है उस ठाकुर जी की मूर्ति जिसके अंदर मीराबाई समाविष्ट हो गई, तो ठाकुर का शयन दर्शन। तो ये द्वारिकाधीश उस समय द्वारिका में विराजमान रहे थे, जो अभी रणछोड़ राय के स्वरूप में डाकोर में सबको दर्शन दे। वो डाकोर क्यों चले गए थे? हाँ, वो डाकोर क्यों चले गए? So it's 12:29. You want me to do it? चलिए, we'll do quick. फटाफट इस कथा को कंप्लीट करते हैं, राइट? सो भगवान का रणछोड़ राय नाम कैसे पड़ा? सो जो जरासन की जो 2 पुत्रियां थी, अस्थि और प्राप्ति, जिनका विवाह हुआ था कंस से, जो कृष्ण के मामा थे, राइट? 17 तो क्या हुआ, कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो दोनों पुत्रियां विधवा हो गई, अस्थि और प्राप्ति, और वो जरासन के पास गई जो उसके पिता थे, और उन्होंने बताया कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, दैट कृष्ण हैज किल्ड कंसा with so and so reason and all this stuff. तो फिर उन्होंने, जरासन ने मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार, and every time he was defeated. But कृष्णा को लगा कि भैया अब ये जब भी आक्रमण करता है मेरी प्रजा को एंजाइटी होती है, या they feel in stress and all these things. Why to do that? Why to kill other people, right? So कृष्णा ने क्या किया, रातों रात विश्वकर्मा को बुलाया और एक ऐसी नगरी की रचना की which is even advanced than today's time. जो आप देखोगे उसका ऑटोबामिन्स डिस्कवरी, जो द्वारिका थी जो समुद्र में ध्वस्त हो गई, उसका जो आर्किटेक्चर था वो आज की किसी सिटी से भी बहुत ज्यादा एडवांस था। देखिए, द्वारिका की एक चीज बताऊं, द्वारिका इसलिए सुपर पावर या एडवांस थी क्योंकि उसका नाम ही इसलिए पड़ा, द्वारी कहाँ, मीन्स वेयर इज द गेट। व्हेन द पीपल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मथुरा ओवरनाइट टू द्वारिका बाय द योग माया, वो जब सुबह उठे ऑल द मथुरा वासी, तो उन्होंने फाइंड किया, अरे द्वार कहाँ पे है, द्वारी कहाँ, क्योंकि बिहारी है ना, तो कहाँ है भाई द्वार, द्वारी कहाँ, तो उससे नाम पड़ गया द्वारिका, राइट? क्योंकि उस सिटी की पहली खासियत थी उसका जो लोकेशन ऑफ द डोर इज कीप ऑन चेंजिंग, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड बाय द एनिमी दैट वेयर टू एंटर, इट हैज अ स्पेसिफिक कोड इज गोइंग ऑन, देयर इज अ आइडेंटिटी प्रूफ, जो हम अभी पीआर कार्ड यूज करते हैं, सिटीजनशिप कार्ड यूज करते हैं, पासपोर्ट यूज करते हैं, देयर इज अ स्पेशल आईडी प्रूफ व्हिच यू विल यूज to enter into the access the city. There is an underground sewage system, underground water system and everything. और समुद्र के बीच में रहते हुए भी मीठा पानी वहां पे सप्लाई होता था. So they have the water purification plant which is even right now we are not able to develop. खारे पानी से मीठा पानी को ट्रांसफर करना, कन्वर्ट करना, वो सब द्वारिका के अंदर था. They were well advanced, well equipped. और इसीलिए भगवान ने द्वारिका को इनहेलेट किया, क्योंकि अगर भगवान को पता था कि अगर मेरे ही वंश में कोई ऐसा राजा पैदा हो गया who is cruel, then he is going to rule the world with cruelty. So he don't want to give this city to anyone else. So उन्होंने जाने से पहले द्वारिका को निस्तो नाबूद कर दिया, क्योंकि इसके अंदर जो भी राज्य करेगा वो सुपर पावर बन जाएगा. That's the reason Krishna has inherited that. So anyway, so 17 times जब जरासन ने आक्रमण किया, right? तो उसके बाद भगवान ने उसको ट्रांसफर किया. फिर जरासन ने क्या किया, उसने कोलैबोरेशन किया किसके साथ, कालियावन के साथ. कालियावन को बून था, क्या बून था, उसने सिर्फ एक ही बून लिया था भगवान से कि कृष्ण और बलराम मेरा वध नहीं कर सकते. दैट इज द बून ही हैज आस्क्ड फ्रॉम ब्रह्मा. सो कृष्ण एंड बलराम कैन नॉट किल मी. सो उसके पास ये बून था, तो कृष्ण के साथ उसको फाइट करवाई. सो देन कृष्णा टू चेज हिम, टू डिस्ट्रॉय हिम, क्योंकि कृष्णा उसको मार नहीं सकते, उसके पास बून था, तो कृष्णा ने रथ से भागे कृष्णा, और उसके पीछे कालियावन भागने लग गया. और तब उन्होंने कहा कि हे रणछोड़, मीन्स रण छोड़ के भाग रहा है तू. तो भगवान, देखिए भगवान की भगवत्ता किसमें है कि उसकी गाली भी प्रसाद बन जाती है. रणछोड़ इज अ नेम, द पीपल हु रैन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड. तो जब उसको रणछोड़ कह के बुलाया तो भी भक्तवत्सल, यानी भक्तों को उसका नाम इतना प्रिय लगा कि भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया. And then Kalyavan भगवान went inside the forest, sorry, and one of the cave,
और उस केव के अंदर मुच्चुकन नाम के एक राजा सोए हुए थे। अब मुच्चुकन ये था कि ये बहुत शक्तिशाली थे। तो देवासुर संग्राम जब हुआ तब इंद्र ने मुच्चुकन को एम्प्लॉय किया, कंसल्टिंग बेस पे उसको बुलाया टू फाइट ऑन द बिहाफ ऑफ डेमीगॉड्स। देन मुच्चुकन फाइट फॉर द डेमीगॉड्स और देवासुर संग्राम में उनकी विजय हुई। तो देन इंद्र सेज दैट व्हाट यू वांट बिकॉज यू हेल्प अस टू विन दिस बैटल। तो मुच्चुकन ने कहा कि मुझे सिर्फ पृथ्वी पे जाना है और अपने फैमिली के साथ अब बाकी का समय व्यतीत करना है। तो इंद्र ने कहा आई एम सॉरी टू से दैट बिकॉज देयर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट स्वर्ग एंड प्लैनेट अर्थ। तो अभी तो सबके बहुत सारे जन्म भी खत्म हो गए होंगे वो, क्योंकि पृथ्वी पे तो बहुत आगे टाइम चला गया। तो मुच्चुकन ने कहा ठीक है, देन आई एम वेरी टायर्ड, मुझे आप ऐसा वर दीजिए कि मैं आराम से सोऊं, बस आई वांट टू जस्ट टेक अ रेस्ट। और ऐसा वर दीजिए कि अगर जो कोई मुझे उठाएगा वो भस्म हो जाए। तो ये मुच्चुकन उस पहाड़ की गुफा के अंदर सो रहे थे। तो कृष्ण भाग के वहां पे गए और मुच्चुकन के ऊपर अपना उपवस्त्र डाल दिया पीला। So then Kalyavan came and he thought Krishna is hiding behind this or sleeping and putting this vastra. So he was kicking the Muchukan. Kalyavan was kicking Muchukan. तो मुच्चुकन उठे और जैसे ही उठे वैसे काल्यावन भस्म हो गया। तो कृष्ण ट्रिक काल्यावन टू किल लाइक दैट। अब ये मुच्चुकन कौन है? मुच्चुकन ने जब भगवान के दर्शन किए तो भगवान ने कहा वॉट एवर यू वांट आई कैन गिव यू बेनेडिक्शन। तब मुच्चुकन ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपसे आपकी दर्शन हुए, दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट फॉर मी। और अगर आप मुझसे खुश है तो मुझे एक ऐसा वर दीजिए कि जिसकी वजह से मैं वापस और एक जन्म लूं और अपना पूरा जन्म सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेम में भक्ति कर सकूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, कलयुग में तुम्हारा जन्म होगा। एनी गेस दैट हु इज दिस मुच्चुकन इज who take a birth in the Kali Yuga in this age and did the devotion for the entire life? Mirabai? Okay, gone. That's not Mirabai. Narsi Mehta? Yes, Narsi Mehta. So Narsi Mehta का जन्म, Narsi Mehta was the king Muchukan. उसका जब जन्म हुआ नरसी मेहता के स्वरूप में, और भगवान के आशीर्वाद की वजह से, भगवान के वरदान की वजह से उन्होंने पूरे समय भगवान की भक्ति की। राइट। अब जो ये द्वारिकाधीश मंदिर है भगवान का, द्वारिकाधीश मंदिर भी भगवान के ग्रैंडसन महाराज वज्रनाभ ने बनवाया था। राइट। ये जो वज्रनाभ थे भगवान के पौत्र थे। भगवान के जो पुत्र थे प्रद्युम्न और उनकी वाइफ मायावती। प्रद्युम्न और मायावती के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध और उषा, उषा के जो पुत्र हुए वो वज्रनाभ हुए। राइट। अब ये वज्रनाभ जो थे उन्होंने इस द्वारिकाधीश मंदिर की रचना की थी। आप अगर जाओगे द्वारिका तो बाहर आपको तख्ती मिलेगी आर्कियोलॉजी की, उस पे लिखा है कि दिस टेम्पल वाज बिल्ड बाय वज्रनाभ एंड द इंस्टॉलेशन वाज परफॉर्म बाय वज्रनाभ। उन्होंने ही द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की थी। राइट। सो ये वज्रनाभ ने और भी कुछ किया था, किसी को याद है? एनीवन एल्स रिमेंबर? प्रभु जी वो 3 मूर्तियों का वो बताया था जो राधा गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, मतलब कि कृष्णा कैसे दिखते हैं, तो वो 3 मूर्तियां बनाई गई थी उनके कहने पर, मतलब। जी वेरी गुड। सो वज्रनाभ और 2 जगह पे उनका नाम आता है। अगर आप फर्स्ट थिंग इज जो ठाकुर जी है वृंदावन के, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, ये तीनों मूर्तियों की रचना भी वज्रनाभ जी ने ही करवाई थी। वज्रनाभ जी जब बड़े हुए तब उन्होंने अपनी माता उषा से पूछा कि मेरे दादाजी कैसे दिखते थे। तब उषा ने पूरा वर्णन किया कि उनका मुंह ऐसा था, उनकी मुखाकृति ऐसी थी, उनकी आंखें ऐसी थी, उनका सीना ऐसा था, उनके चरण ऐसे थे। उस हिसाब से उन्होंने शिल्पी को बुलवाया और शिल्पी ने 3 मूर्तियों की रचना की। फिर उन्होंने माता को ले गए उषा को कि बताओ कि इनमें से कौन सी मूर्ति मेरे दादाजी जैसी दिखती थी। राइट। तो उषा ने कहा कि इस मूर्ति के चरण कृष्ण जैसे थे, तो उसका नाम पड़ा मदन मोहन। इस मूर्ति के जो वक्षस्थल है, सीना जो है वो आपके दादे, तो उसका नाम पड़ा राधा गोपीनाथ जी। और इनका जो चेहरा है वो आपके कृष्ण जैसा दिखता था, तो फिर वो कहलाए गोविंद देव जी। सो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी एंड मदन मोहन जी। कहते हैं कि सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक अगर आप इस 3 मूर्तियों के दर्शन करो
तो आपको ठाकुर जी के दर्शन का फल मिलता है, राइट। अब इनमें से 2 मूर्तियां हैं वो जयपुर के अंदर है, और तीसरी मूर्ति जो है वो करौली में है, राइट। Remind me this katha. We can tell to the other audience who don't know that how he went to Karoli in Rajasthan and why, right? दूसरा जो द्वारिका, दूसरा जो नाम आता है वज्रनाभ का, वो स्कंद पुराण के अंदर आता है। श्रीमद् भागवतम की जब आप कथा सुनोगे तो कोई भी कथाकार उसका श्रीमद् भागवतम महात्म्य जो है पहले दिन सुनाएगा। अब श्रीमद् भागवतम का महात्म्य जो है वो 2 जगहों पे अंकित किया गया है, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में। पद्म पुराण में कथा आती है गोकर्ण महाराज की, राइट। और अगर आप स्कंद पुराण महात्म्य देखोगे तो उसके अंदर कथा आती है वज्रनाभ जी की। वज्रनाभ जी जब वृंदावन गए, जब व्रज गए, तो वहां पे वो किसे मिले? मार्कंड ऋषि से। जब मिले वो पुत्र थे गर्ग ऋषि के, गर्ग ऋषि जिन्होंने गर्ग संहिता लिखी, जिसके अंदर राधा रानी, कृष्ण और उनकी सब लीलाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो गर्ग ऋषि और कौन थे? गर्ग ऋषि कृष्ण के कुल गुरु थे, मीन्स कुल पुरोहित थे। वो उनके आचार्य जिन्होंने कृष्ण को नाम दिया, कृष्ण और दाऊ जी को दाऊ जी का नाम दिया। तो उनकी गर्ग संहिता में भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। तो उनके जो पुत्र थे मार्कंड ऋषि, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि मैं तो समझता था कि ब्रजवासी और कृष्णा और गोपियां कभी व्रत छोड़ के नहीं जाते, पर यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, देयर इज नथिंग हियर। तो मार्कंड ऋषि ने कहा कि हाँ, आपको दिखेंगे नहीं वो, अगर आपको उनको देखना है तो आप कुसुम सरोवर पे जाइए। कुसुम सरोवर के ऊपर भगवान का कीर्तन कीजिए। जब आप भगवान का कीर्तन करेंगे तो वहीं पे आपको इन सब का दर्शन होगा। ये स्कंद पुराण में, पद्म पुराण का स्कंद पुराण के अंदर भागवतम का महात्म्य आता है। तो वज्रनाभ जी ने फिर वहां पे कीर्तन करवाया। जब कीर्तन किया कुसुम सरोवर के ऊपर, तो वहीं पे देवर्षि नारद जी के साथ कृष्णा, उद्धव जी वहां से लता पता, उद्धव जी वहीं पे लता पता बने हुए हैं। उन्होंने भगवान से वर मांगा था कि मुझे लता पता बनाना। कहाँ पे? कुसुम सरोवर के ऊपर। क्यों? ताकि ये जो गोपियां हैं जब आए तब उनका स्पर्श मुझे मिल जाए, ऐसे भक्तों का स्पर्श मुझे मिले, राधा रानी का स्पर्श मिले। तो वहां से उद्धव जी भी प्रकट हो गए, और फिर वहां पे सब ब्रजवासी प्रकट हुए। जब ब्रजवासी प्रकट हुए, सब ग्वाल बाल प्रकट हुए, गैया प्रकट हुई, तो उसी समय वहां पे राधा और कृष्ण के भी दर्शन हुए। तो ये स्कंद पुराण के अंदर महात्म्य के अंदर आता है भागवतम का, उसमें श्री वज्रनाभ जी का नाम आता है, राइट। तो भगवान क्यों चले गए माता जी? तो हम उस पे चले जाते हैं। तो वहां पे डाकोर के एक बहुत बड़े संत थे, संत अर्थात बारोट, जो भरवाड़ कहते हैं हम लोग। तो उनका नाम था संत बोडाना, राइट। एवरी पूर्णिमा को वो क्या करते थे? रणछोड़ मीन्स डाकोर से द्वारिका पैदल जाते थे। क्या लेके? भगवान के लिए तुलसी का पौधा। देखिए, आपसे एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर कभी आपको ठाकुर जी के धाम जाना है, इफ यू थिंक दैट यू वांट टू प्लीज ठाकुर जी इन द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, अगर आपको लगता है कि आपको भगवान को प्लीज करना है, भगवान, देखिए हर कोई जाता है ठाकुर जी के दर्शन करता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ठाकुर जी आपको देखें, तो एक चीज करना, ठाकुर जी के लिए तुलसी का पौधा ले जाना, स्मॉल पौधा। आप यू टेक इट टू ठाकुर जी एंड ऑफर, ही इज गोना सी यू फॉर श्योर बिकॉज यू आर कैरिंग द तुलसी। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, राइट। सो एवरी पूर्णिमा, और ये मैंने इंस्पिरेशन यहीं से ली थी, इस कथा से ही ली थी। तो ये जो बोडाना भक्त थे, द्वारिका, डाकोर से द्वारिका हर पूर्णिमा को पैदल जाते थे। इस क्या लेके? तुलसी का पौधा लेके। कहाँ? द्वारिका। अब जब ये बुजुर्ग हुए तब इनसे चलने भी प्रॉब्लम हुई, तो ठाकुर जी ने कहा द्वारिकाधीश ने कि बोडाना, यू डोंट नीड टू कम नाउ एवरी पूर्णिमा, यू आर गेटिंग वेरी ओल्ड। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे प्राण चल रहे शरीर के अंदर, मैं हर पूर्णिमा को वैसे आऊंगा जैसा मैं आता रहता हूँ। तो भगवान ने कहा चलो, या और एक तरीका है, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। तो बोले हाँ, वो पॉसिबल है, मैं आपको अपने साथ, लेकिन आओगे कैसे आप? तो बोले चिंता ना करो, जब तुम अगली पूर्णिमा को आओगे तब बैलगाड़ी लेके आना, मैं तुम्हारे साथ बैठ के चलूंगा। तो बुराना जो था, बैलगाड़ी लेके द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंचे तो ये भी एक कथा है कि when he started and he take a halt in between, the next day morning he reached Dwarika with the बैलगाड़ी, which is taking generally decent time, around 2-3 days. तो जब वो द्वारिका पहुंचे, बाहर देखे, उठते देखते हैं तो द्वारिका के द्वार के बाहर है वो। तो उनको लगा कि चलो ठाकुर ने कोई लीला की होगी। एंड देन ही वेंट टू हैव अ दर्शन ऑफ ठाकुर जी। तो बोले ठाकुर जी, मैं बैलगाड़ी लेके आ गया। उसने कहा कि बुराना अभी तो नहीं आ सकता, वरना हम दोनों को मार पड़ेगी। एक काम कर, तू रात को वहीं पे गेट के बाहर सो जाना,
मैं धीरे से आके तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाऊंगा। तो ठाकुर ने जब शयन आरती कंप्लीट हुई, भगवान शयन शयन पहुंच गए, मंदिर के द्वार बंद हुए, तब भगवान वहां से निकले और बुढ़ाना की जाके बैलगाड़ी में बैठ गए और फिर बुढ़ाना को कहा कि तू आराम कर, अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ। जैसे ही बुढ़ाना ने आराम किया, ठाकुर जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग इज इन डाकोर, राइट। तब वो डाकोर ऐसे पहुंचे। इसीलिए आप देखोगे कि जो पूर्णिमा का दिन है इन रणछोड़रा इन डाकोर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अनलिमिटेड अनगिनत लोग आपको डाकोर में रणछोड़राय के दर्शन करने आएंगे। आपको पता नहीं चलेगा लोग कहाँ से आए और कहाँ चले गए, क्योंकि वो सब इसी महात्मा को ध्यान करके कि जैसे आपने बुराना पे कृपा की कि आप हमारे ऊपर भी कृपा कर दो, तो इसीलिए लोग पूर्णिमा के दिन जहां कभी रहते हो वो सब रणछोड़राय के दर्शन करने के लिए आते हैं, राइट। We will stop here, right? Because it's 12:44 and some people say that they have to go early. So we'll do it next time. So since you asked this, Mataji, I just sent that why he came to. Let me finish this Borana Katha only. So then what will happen? These people from Dwarika, they found that भगवान चले गए, तो उनके लिए भी तो सबसे बुरी बात है कि भगवान हमें छोड़ के चले गए। तो कहाँ गए? तो सबने बोला कि ये हर बार पैदल आता है, इस बार हमने उसे बैलगाड़ी में नगर के बाहर देखा था, तो कहीं ना कहीं इसने भगवान की चोरी की। तो सब लोग वहां से डाकोर आए। डाकोर आए तब बुढ़ाना ने डर के किया, ठाकुर जी मैं क्या करूं, आपको कहाँ छुपाऊं? तो बोले, क्योंकि इनके पास तो 1 बेडरूम हॉल किचन का घर था, छोटी सी कुटिया थी। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, मुझे इस तालाब के अंदर छुपा दो। वो तालाब कौन सा था? गोमती तालाब, जो मंदिर के सामने पड़ता है। तो संत बुराना ने उनको गोमती तालाब के अंदर छुपा दिया। और जब ये पीपल आए, then they says that where is ठाकुर जी, where is ठाकुर जी? They didn't find it. तो उन्होंने क्या किया, बोला कि शायद इसने तालाब में छुपाया होगा, क्योंकि he was also staying at the bank of the तालाब। So उन्होंने वो बड़ा सा आता, वो आप देखोगे ना भरवाड़ लोगों के पास एक बहुत बड़ा बाम्बू का स्टिक रहता है और जहाँ पे एंड में ऐसे कर्व वाला एक क्या बोलते हैं, एक औजार रहता है जिससे वो लकड़ियां, सॉरी वो झाड़ की टहनियां वो सब तोड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको मारना शुरू किया तालाब के अंदर, क्या कि पत्थर है, स्टोन की मूर्ति है, तो जब भी ये लोहा पत्थर टकराएगा तो आवाज आएगी। दे स्टार्टेड पुशिंग इट हार्ड एंड देन वन पॉइंट इट टच रणछोड़राय's श्रीअंग, और फिर भगवान का खून वहां से निकला। इन द सेंस दैट वाटर स्टार्टेड गेटिंग रेड एज सून एज इट हैपेंस। संत बुराना इनके चरणों पर गए, बोले ठाकुर जी यहीं पे आप ले लो ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी ने उनको वापस दे दिया, इनको इन द्वारिका से आए हुए पांडा को, ब्राह्मणों को। तब हुआ ये एक्चुअली कि बुराना बहुत रोने लगे, बोले ठाकुर आपको जाना ही था तो ये सब पूरा नौटंकी क्यों किया? रहना था तो रहते, जाना था तो चले जाते, ये सब अगर जाना है तो ठाकुर ने बोला तूने रोकने की तो मुझे कोशिश नहीं की। तो बोले मैं रोकू कैसे? तो बोले एक काम कर, अब तूने पूछा मुझे कैसे रोकू तो मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ। तुम उन लोगों को बताओ कि ठाकुर को जितना तोला जाता है उतना सोना अगर मैं आपको दे दूं तो आप मान जाओगे? तो उन्होंने यही चीज रखी उनके सामने। अब देखिए, ये भी जो लोग कहते हैं कि ये धन के लोभी थे द्वारिका से आए हुए पांडा, तो उन्होंने सोने के बदले में ठाकुर जी का सौदा कर दिया, ऐसा नहीं था। ये लोग भी ठाकुर जी से इतना ही प्रेम करते थे, लेकिन ये बुद्धि के वश थे कि उनको लगा कि ये इतना भला संत है और इसके पास कोई फूटी कौड़ी नहीं है, तो ये सोना तो ला नहीं सकता, तो इसकी बात भी रह जाएगी और हम ठाकुर जी को ले भी जाएंगे, तो ही वोंट फील आल्सो बैड। उन्होंने बोला ठीक है, तुम अगर ठाकुर जी के बार सोना दे तो हम ले जाएंगे, बिकॉज दे थिंक फ्रॉम इनसाइड कहाँ से लाएगा, ही इज नॉट गोना गेट इट, सो वी कैन टेक ठाकुर जी बैक टू द्वारिका एंड ही वोंट फील बैड आल्सो। तो यहाँ पे तुला भार की व्यवस्था हुई, तो एक जगह पे रणछोड़ जी को बिठाया गया और दूसरी जगह पे ही हैज टू पुट द वेल्थ। नाउ ही डोंट हैव एनी वेल्थ टेक्निकली, तो वापस से वो अंदर से अंदर, ठाकुर जी आपने बोल दिया, इन्होंने तो तुला का सेटअप भी कर दिया, मैं अभी कहाँ से लाऊं? तो ठाकुर जी ने कहा देख तेरे घर में कुछ तो रहेगा, तेरे घर में कुछ तो रहेगा, तू झूठ बोल रहा है। तो बोले मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मैं सोना कहाँ से लाऊं? तो ठाकुर जी ने कहा देख आसपास देख, तेरे घर में कुछ तो सोना रहेगा। जब बोडाना संत ने देखा अच्छे से, तो उसकी वाइफ ने नथ पहनी थी, छोटी सी आती है ना वो डॉट नथ, वो सोने की थी, उसकी वाइफ के पास इतना ही सोना था। उन्होंने कहा प्रभु जी बस यही है, सॉरी आई फॉरगॉट। उन्होंने वो नथ उतारी और उस तुला के अंदर रख दी। जैसे ही उस तुला के अंदर रखी, भगवान उससे तुल गए। जब तुल गए तो ये सब जो संत जो द्वारिका से आए थे, उन्होंने वचनबद्ध वो तुला, वो जो नथ थी वो लेके वापस जाना पड़ा और ठाकुर जी यहाँ पे रह गए। इसीलिए आप अगर द्वारिकाधीश जाते हो तो वहां पे तुला भारम का भी महत्व है।
मंदिर के बगल में ही वो तुला रखी हुई है, जिसके अंदर आप चाहो तो कोई ना कोई, अगर आपका कोई मनोरथ है तो आपको मनोरथ करके भगवान को तुला भर के हिसाब से वहां पे दान भी कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट द द्वारिकाधीश कथा। इनके आगे से कथा है कि दिस ऑल्सो द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड हु वेंट टू द्वारिका। फिर द्वारिकाधीश कैसे प्रकट हुए, वो भी कोई घड़ी हुई मूर्ति नहीं है, वो भी प्रकट हुई मूर्ति है। उसकी कथा हम कभी और करेंगे। आई होप इट आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू। सॉरी। Yes, Prabhuji, very nice. Thank you. Okay, so we'll complete our session. We'll do the Kirtan. I said last thing is our chanting. Are you ready, Mataji, with your beads and everything? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Vidya Mataji for helping us to chant. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo. Hare Krishna. Next lecture. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Radhe Radhe.